Okay. First question is, any doubts before we begin the session? Any very urgent doubts or immediate doubts before the session? Otherwise, keep your doubts for the end. First question is, since the decade of 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. I guess ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, right? Somewhat not a very difficult question, more or less from your static history portion. The only challenge was how you prioritize your points as well as write the details, right? So what could be the intro? Discuss that since the end of 1910s, end of decade of 1910s, and the turn of the next decade, various changes were seen like non-cooperation movement, Khilafat movement, Russian Revolution, Boer War, which drove various ideological groups and their emergence, right? Something of this, in this way you can introduce your answer, right? This will somewhere set the tone of what's coming in the body, right? Any doubt to anyone? Right. The major mistake, or I'll say the major shortfall in most of the answers I felt was that you had just listed the points, right? That okay, revolutionary terrorist and its emergence, communist ideology, Gandhian socialism, then constitutional participation, Muslim Hindu university unity, and all these things, right? A better way could be that you can say that socialism was a major ideological strand which emerged, and it emerged in different ways, something of this sort, right? So different forms of socialist ideologies. Under this, you can expand that how the socialist ideology of revolutionary terrorists and therefore HSRA was different from the communist ideology, from the Gandhian socialism which emerged, from the socialism which emerged within Congress, basically under Jawaharlal Nehru and SC Bose, right? This would have been a better way of structuring your answer, right? So, nothing to discuss, nothing you are not aware of here. Revolutionary terrorists, HSRA, due to, the major influence was Russian Revolution and the discontent with the non-cooperative movement, right? And now here you have to focus on the ideology, right? Many of you, what you have done is that you have focused on the facts around, let's say HSRA, that it was founded by this, it was founded by this. Of course, that is important, but the question is centered around the ideology and the social base, right? Either you can keep ideology and social base as separate, and then frame your answer as in body one, body two. In one body you tell about the ideology, in the second body you tell about the social base. Even that is fine, but the issue with that structuring is that there is a possibility of repetition, right? What you can do, you can pick up a general point, as in, let's say in this case, revolutionary terrorists, and under this you can mention ideology and social base, right? But even that way of doing the things is fine, whatever works better for you, right? Both the ways are correct. In ideology, you will have to pick up the, the more closer you are to their core points, right? The core ideology of HSRA, let's say secular vision, independent United States of India, socialist vision, anti-imperial vision, something of this sort. Then the social base, peasants, workers, students, right? And their mobilization. Give examples here, right? That's the Punjab Naujawan Sabha was founded, and all these type of examples, right? The next is the communist ideology. M.N. Roy founded the party, right? He was inspired by the Communist International, and his social base also included workers, peasants, etc. Right? Here, it is better not to include students. That is where how you differentiate between that. Okay, this was the social base of one, this was the social base of another, right? Just you can say that it was taking socialism in the extreme form, right? Just a line bata ke, and you do not need to expand too much here, right? Because otherwise you'll end up eating you'll end up using your words for lesser important points and compromising on the more important points, right? Then you say about that, okay, there was a version of Gandhian socialism as well, which was about Gandhian ideas and mixing the ideas with socialism.
idea of trusteeship, that there should be no industrialization or there should be lesser industrialization, right? More rural economy, model of Sarvodaya, and the proponents were, let's say, Vinoba Bhave, JP Nair, and they were followers of this, this idea, right? इसमें भी हर in each and every point, the more closer you are to the ideology, the more closer you are to who followed it, right? The better will be your answer, right? Do not waste your word that these were the proponents, this is the ideology they followed, right? Straight come to the point, because you have too much to write here, right? In the history question, as much as details you give, as much as, of course, if it is the requirement of the answer, as much as analysis you give, the more marks you're going to get, right? There is no two way about how you score more marks in history. And this includes art and culture as well. Right. Then within Congress, there emerged Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and their vision of socialism was somewhat inspired by the core socialism followed by Russia, right? And and they were the major harbingers of the social ideas within the Congress, right? ऐसा कुछ बताकर you can end this portion of socialism here, right? Now, most of you have touched upon this part in, like the I said, na 1, 2, 3, 4, 5, 6 in this way, right? It is better. I'll say कि ये तो ठीक है, and in a 10 marker this would work, right? But in a 15 marker, no, if you can produce these points, and I agree, these are not the core points you would like to have here, right? Because, let's say constitutional participation, okay, what is the social base? You're not able to relate that thing, but at least there was an ideology which was, coming in that, okay, we need to participate in the councils as well, right? So keep these points on a lower side, but especially in a 15 marker, these can be the points you can include, right? That, okay, there was a debate regarding what ideology needs to be followed, about the future movement, about the future of the movement. It was also emerging. Pro changers were in favor of entering the councils, disrupting the council, whereas no changers advocated for constructive work, something of this sort. ठीक है, ये I'll say just एक ये addition है for a 15 mark, ठीक है ना? Do not bring these points above these points, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? Then, due to national cooperation movement and the Khilafat movement, there emerged ideological cohesion on common issues between Hindus and Muslims and Hindu-Muslim unity. ठीक है? वो ideology word जितना use करते रहोगे, तो somewhat ना वो click करेगा examiner के साथ, and your choice of prioritizing the points, that will give an indication to the answer, to the examiner, that yes, this student has actually understood the question and also trying to expand in different dimensions while being close to the topic as much as possible. ठीक है ना? आप बहुत दूर नहीं जा रहे हैं टॉपिक से, you're not going too far away from the topic. ठीक है? Maybe you're just touching the periphery and trying to include some value addition. ठीक है ना? इसमें there is nothing illogical in this thing, right? You can include this thing. Okay, then if you want to expand, there was, then women as a group were emerging, Harijan movement was emerging due to, let's say, Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, and thereby you can conclude your answer. So point of saying is, do not merely confine yourself to this much if it is especially a 15 marker, to talk about this aspect also, right? If it is a 10 marker, this much is fine, right? But then you will have to elaborate each and every point, right? What is important to include here is, you have to include the years. Okay, HSRA was founded in this year, right? Non-cooperation may be ended in this year. Okay, the more you keep close to the years, the more you substantiate with facts, the more justice you will be doing to this part, right? Since 1920s, that okay, in 1921 this, 26 this, 28 this. Okay, I'm not saying this is important, but if you do it somewhere, you give yourself a chance of scoring an extra
half a mark or 1 mark or 1.5 mark, right? Chronology is important, names are important, right? Then some students, what mistake they have done is that they have included the events of 1910 to 1920 as well. For example, events of Bal Gangadhar Tilak, right? Then events related to Annie Besant, events related to Home Rule League, right? These are not the demand of the question. Of course, this can be a platform based on which you start your answer, but that cannot be the body of your answer, right? You can give a background in this form, but that cannot be a part of your body, right? This, and don't even think like कि 15 marker में तो I'll be able to do it, right? आप deviate कर रहे हैं आंसर की डिमांड से, ठीक है ना? That does not send a very good signal to the examiner, ठीक है? Then some people have taken it too far, as in some people mentioned about RIN, Royal Indian Navy की mutiny, INA trials and all this thing in the conclusion that after 1930s till INA trials and RIN naval mutiny, there was constant upsurge which resulted in freedom. Okay, you should realize that you are talking something which is out of the context of the question. Question is not talking about these things. This somewhere feels कि you have just crammed a conclusion and you are putting it there, right? ऐसा मत करो, because as much as a good body you write, a conclusion of this sort na can somewhere make the examiner a bit disillusioned, right? कि ये क्या मतलब है यहाँ, ठीक है? तो keep close to the topic, ठीक है? पेरीफेरी तक जाओ, but ऐसा भी नहीं you are exiting the stadium then, right? I hope you are able to get this thing. This thing was very weird in one of the answers I read, right? Then I told you one of the mistakes few students made was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13. Okay. When you are increasing your points beyond 5 or 6, right? It is always advisable that you subcategorize, right? Economic, social. Here we did this thing, right? Of course, we had lesser points for this thing, but at least this one was one bar, right? This always looks more good and is more readable, right? Any doubt to anyone on this question? Then in conclusion, you can mention that the upsurges or the ideological strands of the 1920s were one of the major contributors in furthering our national movement, right? In expanding the social base as well as bringing a more rational and uh, humanistic way of thinking, something of this sort you can say, right? Any doubt here? Any doubt to anyone? If question में कोई doubt? I hope easy question. This was an easy question, right? But the challenge was to put forward the right points at the right place and not miss out on the important thing, right? सर एग्जाम में अगर ऐसा नहीं सोच पाए कि सोशलिस्ट के अंदर भी ये सारे स्टैंड्स गिर रहे हैं एंड उसके बाद पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. नेगेटिव इम्पैक्ट इस सेंस में होगा कि रीडेबल नहीं लगता है बस वो, राइट? वो कम रीडेबल लगता है, स्पेशली इफ लेट्स से जो कॉपी जस्ट बिहाइंड यू, राइट? द पर्सन whose copy has been checked just before you, if he has done some sort of this thing, that he has subcategorized the things. If let's say the 10 copies are following in this manner, तो शायद हो सकता है examiner won't be having this sort of bias. But if you get a copy, if he or she gets a copy which is having this form of structuring, then of course it does impact in, let's say, a 1 mark or 1.5 mark.
ठीक है, स्पेशली इन 15 मार्कर ये इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन अ 10 मार्कर अगर है तो अगर तो इफ यू आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 5-6 पॉइंट्स, ठीक है ना, यू नो कि दिस क्वेश्चन कैन हैव 5-6 डिसेंट पॉइंट एंड दैट इज इट, राइट, इससे ज्यादा नहीं। बट इफ यू सी कि 7-8 पॉइंट आपको लिखने पड़े, देन डू नॉट ट्राई टू लिस्ट इट इन अ लीनियर फैशन, right? There will be some sort of a subcategorization which will be possible, right? And this is what you have to practice. If you have done it till now, very good. But if you've not done it, this is what you have to practice in the next 80 questions, right? And this comes with practice, right? You cannot say that I am not able to do it. Most of the students who are able to do it today were not able to do it once upon a time, right? And in a 15 marker, always advisable कि 6 पॉइंट से ज्यादा, 7 पॉइंट से ज्यादा, do not have it in one heading, right? Let's say the question is just talking about one aspect, right? Where let's say you find out that I will have to write 13-14 points, right? For a 15 marker, then try to break it in minimum 2 headings, right? Otherwise वो अच्छा नहीं लगता है देखते, ठीक है ना? It looks like you have just crammed something and you have just vomited something. Understand? थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग देना is possible if you are well versed with your content and if you have practiced it beforehand. ठीक है, तो एडवाइजेबल रहेगा हमेशा ही इस चीज को करना, ठीक है। आई होप योर डाउट वाज क्लियर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of the early Indian art and history. See, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में व्हाट आई हैव सीन, यूपीएससी थोड़ा सा ट्राइज टू प्ले विद यू। वन, थोड़ा सा ओपन एंडेड स्टेटमेंट देगा, ठीक है, और आप उसको थोड़ा सा लिमिटेड तरीके से यू इंटरप्रेट इट इन अ वेरी लिमिटेड मैनर, राइट? दिस यूजुअली हैपेंस इन आर्ट एंड कल्चर्स एंड व्हाट इट डज इज it will give you 2 dimensions to explore. See, art and history, knowledge of in early Indian art and history. तो where it wants to divert you is कि आप art भी अलग बताएं and history भी, you tell it in a separate manner, right? Of course this is like वो निर्वाणा वाली बात होती है ना, if you are able to do this thing in a 7 minute or a 10 minute, nothing like that, right? But if you are not able to do it, it is better कि जो बेस्ट पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसी में आर्ट एंड हिस्ट्री का मेंशन करते चले, राइट? डू नॉट ट्राई एंड कंफ्यूज योरसेल्फ टू मच कि यहाँ पे आर्ट क्या होगा, अब हिस्ट्री क्या होगा, ठीक है ना? क्योंकि रियल एग्जामिनेशन सिनेरियो में दिस इज नॉट पॉसिबल विद द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, राइट? आई होप यू विल एग्री विद मी। एंड आर्ट एंड कल्चर इज दैट सेक्शन जो कि which is difficult per se and questions from it are also difficult, right? So वहां पर आपके you have to play somewhat smart कि कोई बात नहीं, if I'm losing half a mark here, that is done, right? वो चलेगा मुझे, but I should not be like कि मैं points ही miss कर दूं totally, है ना? क्योंकि if you do that, you are somewhere losing 2.5 marks, right? If you are able to do, if you are, let's say you are a history student, आपका ऑप्शनल है या जो भी है, कल्चर बहुत पसंद है, एंड यू आर एबल टू डू, यू आर एबल टू सेग्रीगेट आर्ट एंड हिस्ट्री, नथिंग लाइक दैट। बट इफ यू आर नॉट, मेक श्योर वट एवर पॉइंट्स यू आर राइटिंग उसमें यू आर मेंशनिंग अबाउट आर्ट एंड हिस्ट्री, राइट? And what I mean by open-ended statements, let's say here UPSC mentioned about the rock cut architecture, right? Many of the students interpret it as the rock cut cave architecture, right? There is a difference between rock cut architecture and rock cut cave architecture, right?
cave architecture is just one form of rock cut architecture. Of course, it is the most important form, but it is one form. Rock cut temples are another form. Rock cut monuments, which are not neither temples nor caves, are another. Right? So, open-ended दिया UPSC ने, so that you can generate content. But if you interpret it in a limited space, in a limited way, so you will have some shortage of content. ठीक है, तो always be very sure कि in art and culture there is a possibility that UPSC might give you an open-ended statement. So be very liberal with your interpretation. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि you know the zone of thinking, मान लो लिमिटेड जोन ये है एंड जितना पूछा यूपीएससी ने या जितना हम उसको आंसर कर सकते हैं वो ये है, तो इतना तक यू शुड बी राइटिंग, राइट? बट ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर भी फिर लिख रहे हैं, राइट? वो गड़बड़ हो जाती है, राइट? जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर ना, देयर आल्सो यू विल सी कि the statements can be interpreted in a broader manner, right? As well as UPSC has tried to confuse you by focusing on two parts. Right? You can, what intro can be that the rock cut architecture has evolved since time immemorial from caves of early human till monolithic cave structures like temples. They can be of three types: cave architecture, rock cut monuments, and rock cut temples. Right? Simple, sir. This can be an introduction. Right? What is the body? As I told you, if you can divide, nothing like that. But if you find it difficult, be practical, right? That okay, it is impossible for me to divide the things in 7 minutes. I'll rather state the points and not compromise on the art and history aspect, right? Okay, better to integrate. So you can start with the early cave, that Bhimbetka caves, Satparani caves, and whatever caves are mentioned in your fine arts, one or two caves, right? I'm not able to recall the name of that cave of Uttarakhand. वो भी आप mention कर सकते हैं. It is mentioned in fine art. ठीक है. So whatever you can recall, one or two caves. Bhimbetka, of course, is essential. That sets the tone for the things. Apart from that, whatever one cave you can remember, उसमें you have to tell about that. Okay, it mentions them. अब जरूरी नहीं है हर जगह you write the keyword art, write the keyword history, because it is not possible to segregate. Your intention should be कि मैं हर point में at least I mention about one aspect of history minimum and one aspect of art, right? So it dealt with the daily chores, it dealt with the animal human association about dancing, and since and the paintings were not depicting any particular religion, therefore they were secular in nature, right? इतना बताया, move forward. Next is the modern caves, right? You can say they were the first to think in the stone, right? Rock cut caves, they made rock cut cave for chaityas. In bracket, you can mention what chaityas are, right? Then viharas for monks. They depicted in that there was a depiction of Jatak stories, which depicted about the social life during Buddha. Example, Bharuch Stupa. Ashokan rock cut pillars, right? This is where I'm trying to point out. This is not an example of rock cut cave, but it is an example of the things which were rock cut, right? So इसमें फिर sculptures भी आ जाएंगे ना, और मतलब inscriptions भी. Anything which is rock cut, rock में से ही बनाई गई है, right? They were engraved messages. They were from Afghanistan till, let's say, Odisha, Dholi, right? वो mention कर दो. See, you are mentioning the details, you are mentioning the history as well, and you are mentioning the significance क्या था, right? This is what is the demand of the answer. Okay, they tell about the polity, society. Give some examples. कोई एक आध दो याद हो अशोकन इंस्क्रिप्शन का, ठीक है, वो बता देना. इसमें एक हैक क्या होता है ना, see, the examiner does not know exactly कि इस rock cut monument में ये बताया गया होगा, ठीक है? Broader sense में we only read that it tells about the polity, tells about the economy, society, and if you see the real time scenario, तो
इतना ही याद रह पाता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द 8-10 major points which you will recall in the exam, you are broadly able to memorize the thing in this aspect, right? The thing is, you know about Mauryan polity, you know about Mauryan society, you know about Mauryan economy as well. कोई एक आध दो पॉइंट बताते रहो that okay, this talked about this thing, this talked about this thing. ठीक, अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि यू आर कंप्लीटली claiming a false thing, right? You are just saying that okay, ये true है, to which examiner cannot deny that it is not true, right? I hope you get my point. Okay, it is impossible for you to memorize that okay, in caves in Mauryan periods this particular thing of Mauryan polity was mentioned, this particular thing of Gupta society was mentioned, right? But in general, you know about Mauryan polity. In general, you know about Gupta society, and you also know कि एक आध दो caves के नाम you know, right? उसी में बता दो this talked about this thing, this talked about this thing. Of course, this is after let's say you do not remember anything, right? But if you remember something specific, of course that will come as the primate thing, right? As the primacy, right? I hope you are able to make sense of what I'm trying to say here. ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है. डू नॉट मिसइंटरप्रेटेड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम नॉट सेइंग कि कोट द रॉन्ग फैक्ट, राइट? कोट अ फैक्ट which sounds logical, right? To where examiner has the least possibility of giving you lesser marks, right? Or not awarding you something, right? एनी डाउट? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये काफी जगह यूज हो जाता है कल्चर में, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड दिस थिंग. ठीक है, Mauryan caves. एंड नेक्स्ट व्हाट पीपल डिड वाज कि they discussed about Ajanta Ellora, okay, then they discussed about Guptas. Of course this is fine, this is how the answer should move, okay, if it is a 10 marker question, right? So 10 about early caves, Mauryan caves, Ajanta caves, later caves, and done with it, right? उसकी डिटेल्स बीच में बता दी. But let's say it is a 15 marker question, of course you will need more points then, and then it is better to move somewhere in chronology, क्योंकि chronology में आप सोच सकते हैं actually, right? Art and culture, ancient medieval history, every student has done in good details in prelims. That is why chronology ka most of the students are having an idea, right? What you can do, okay, after Mauryas, Satavahanas came. You know that they came from 2nd century BCE to 2nd century CE. Okay, and Satavahanas के time पर there were good developments in the cave segment, yeah, rocket segment. So mention the Satavahana that in the Deccan as well this developed, right? After Mauryas, examples Karle, Pandavleni, Kaneri. This is not the demand of the question, but mentioning them is important, right? You cannot say that they have only asked about history and art, therefore it can be done without the names as well. 1, 2, 3 names you have to mention. They give credibility. It'll tell that they give insights about the Mahayana, Heinyan Buddhism. It has integration of local elements and the Western elements, Western India elements. Right? Based on the logic I gave you in the Mauryan, this logic, this logic, right? Can you tell me one thing which you can include in Satavahanas, right? Something which might not have been in their caves, but something if you write, examiner will say it cannot be denied, right? It might be possible. What is one, let's say, one fact about society, polity which you can mention about Satavahana? So matrilineal था. Exactly, matrilineal. And बहुत ही ट्रेड ड्रिवन सोसाइटी थी ना, ठीक है, इकोनॉमी थी. ये 2 पॉइंट्स बता देना. द Satavahana caves at Karle, at Pandavleni mention. Simply you can say that Satavahana caves at Karle mentioned
that give indications that it was a matrilineal society, right? The Kanheri caves give an indication that how a trade was a dominant occupation of the Satvana period, right? Itna bata ke, you are not lying, maybe you are not even accurate, but you are accurate enough to score, right? You are nowhere bluffing here, right? I hope you get this point. Right. Similarly, a point if you want to mention Udaygiri and Khandgiri caves, Kharwales of Kalinga, right? Then major point is Ajanta Ellora and the discussions around that. Okay, they mention about Buddhism, Ajanta cave, Buddhism, Jainism, and Hinduism. Information about Jataks, Purans. You give specific example that okay, this cave talks about Arjuna giving penance, right? This Queen Mahadevi and all these things, right? That okay, in uh, Ajanta case, the focus was on volume, right? That the volume of the art, all these things, right? जो भी अजंता caves के बारे में, of course, you will read about it if you read art and culture in a decent manner. So 3-4 points you can mention here, right? That would include details as per the demand of the question. Like if it is a 10 marker, of course, lesser demands in Ajanta and Ellora. If it is 15 marker, you can have 2 more points here, right? Anyone who can tell me 1 or 2 specification about Ajanta and Ellora on the art and history side. History तो चलो हमने discuss कर लिया that they reflect about Buddhism, Jainism and Hinduism, right? About Jatak stories and all this thing. Anything about art you can tell? पेंटिंग्स बता सकते हैं सर, पद्म पानी वाला पेंटिंग, right? फ्रेस्को पेंटिंग्स वगैरह जो है। Exactly. और मौर्यन में सर वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे वो उनका उस टाइम पे आयरन रस्ट पिलर था ना, तो मे बी आर्ट एंड रॉक कट में कुछ डाल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। बट वो रॉक कट था या नहीं, वो तो एक मोनोलिथिक शायद उन्होंने कुछ बनाया था ऐसा। तो मतलब वो लॉन्ग लॉस्ट टेक्नोलॉजी में भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं, जैसे वो एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल टॉप डाउन बनाया ना उन्होंने कुरेद के, तो हाँ, वो वैसा बता कुछ सकते हैं, वो रॉक कट में बता सकते हैं, राइट? एक ऐसा था ना कुछ कि फ्रेस्को पेंटिंग बाय कौन सी टेक्निक दे बिल्ड, I'm not able to remember the name. Mural paintings, right? Mural. A mural painting. One of the things was that they did not use red color, I guess. Either they did not use blue color or red color, right? And it depicted about the relations between humans and animals as well. कुछ ऐसा करके नेचर, ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है? तो 2-3-4 पॉइंट देखो, अजंता एलोरा के पॉइंट्स आई एम मैं मान नहीं सकता, आई एम नॉट, आई कैन नॉट say that you are not aware of Ajanta and Ellora points, right? When you appear for me. So whatever points suit best here. If you talk about Ajanta and Ellora, you have to remember the history about Ajanta and Ellora, what sort of art was there, basically the paintings and the religious aspect, right? ये basic dimensions में आपको prepare करना होता है, plus some sort of examples कि केव नंबर 19 में ये पेंटिंग है, 17 में ये पेंटिंग है, ये शूद्रा राहुल की ये पेंटिंग, राइट? दिस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, ठीक है ना? एंड लास्ट वुड बी, यू कैन से कि द मोस्ट एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज द emergence of rock cut temples, right? Rock cut monolithic structures which emerged during Guptas and Pallavas, right? So Panchrat temples, Varaha temple, Shore temple at Mahabalipuram, right? All these temples you'll mention. They emerged during Guptas and Pallavas. They mention about Mahabharata, Ramayana, and Purans,
and it indicates a transformation of society to the Brahmanism. Right? Itna karke you can end this answer. One of the thing one student did was mentioning of IVC, Indus Valley Civilization. I was not able to connect, how he or she was trying to connect that thing to the rock cut. If you are, देखो, all these are points which examiner even knows, right? So it is easy for him or her to connect with this thing. But points like IVC, if let's say it is your history optional, okay, GS wale to they do not read much about it. Okay, if it is your history option and you definitely know something about rock cut in the IVC, right? Then it becomes your duty to explain this, these hidden points. ठीक है, आप सिर्फ उसको मेंशन नहीं कर सकते कि आईवीसी में ब्यूरियल माउंड वाज देयर एंड इट एक्सप्लेन्स रॉक कट आर्किटेक्चर. ठीक है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि क्रेडिबिलिटी शो हो उधर. You actually know the things. Okay, otherwise it is okay not to mention these type of maybe unique points if you are thinking about it, right? इसके अलावा भी आपके पास बहुत points हैं, right? So the learnings from this question would be: A, do not compromise on details. Number 2, questions are open-ended, read them carefully. Number 3, see, dividing the body, best thing, but if you are not able to, then integrated manner में भी आंसर को लिखा जा सकता है, right? But the important thing is कि आर्ट और हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ बताते रहे, right? Any doubt in this question? Next is, see, Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Can you see the two aspects again? Indian philosophy and tradition, open-ended thing, right? They're not saying Indian religion, they're saying philosophy and tradition. So they want you to explore. They are in a way indicating you that you can explore the dimensions, the related dimensions as well, right? Then they're telling you that shaping the monuments and their art. Here, they're trying to confuse you, right? Their objective is that you somewhere differentiate between art and monuments, and because you'll be able to, you'll not be able to do it in the limited time frame, therefore you'll compromise the things here, right? If you're able to do, best है वो चीज. If you're not able to do, point by point, मतलब एक philosophy की discussion की, उसी में you mention about monuments and art. दूसरी philosophy की discussion की, mention about monuments and art, right? इंट्रोडक्शन इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे भी फिलोसफी, कल्चर, ट्रेडिशन की बात हो, सिंपल है कि इंडिया हैज बीन अमेलगेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर व्हिच हैज इंपैक्टेड since the time immemorial, which has impacted art and culture from ancient to modern time. कुछ ऐसा सा आप बता सकते, right? बॉडी में the first example, the first evidence could be क्योंकि IVC was the age where of course there was some sort of कि religious angle था, कि nature की worship थी और वो सब था, शिवलिंग, पशुपति and लिंगा worship, but monuments wise कुछ ज्यादा था नहीं, तो we do not have anything to write here. उसके बाद the major development which came was pre-Mauryan and Mauryan times पे, right? थोड़ा 6th century onwards जो धीरे धीरे it started, right? So you can say first would be, ये point सबने मिस कर दिया थोड़ा थोड़ा. You can mention कि श्रमण ट्रेडिशन जो थी, ठीक है,
the examples of yaksh yakshini on torans, okay, during the Mauryans, okay. Of course this is apart from the caves, viharas, all these you'll will mention, right? ये थोड़ा सा these things add value to your answer, right? कि yaksh yakshini is also a part of your tradition, right? They are also indicating like demigods and goddesses होते थे ना ये, जो कि माने जाते थे उस टाइम पे, and they were also present on the Buddhist torans, right? The stupas. So this thing you can start with, okay? When you mention about the Mauryan period, right? Do mention this was one tradition which impacted the art and architecture at that time, especially the monuments, right? Mainly during modern times, talking about Buddhist jatas, caves, viharas, stupas, right? Mention about Bharut stupa and all these things. क्योंकि वही बुद्धिज्म वाला ज्यादा इसमें एंगल आएगा, which we discussed in the cave architecture as well, right? In the previous question, same points, right? The next thing you can mention here is इन दो points को what you can do कि आप you can even give the heading like Mauryans, right? During the Mauryan time, right? Next is you can clearly see कि Iranian tradition जो है उसने भी काफी हद तक influence किया, right? Mauryan architecture, right? Any doubt here? सर अपन इसमें यही कर रहे हैं ना, अपन टाइम बता रहे हैं और उसके बाद मॉन्यूमेंट और आर्ट दोनों अलग अलग बता रहे हैं. This is the easiest way in my in my opinion to approach the art and culture questions in the limited time that they have to be approached, right? 7 or 11 minutes you will max get, right? उसमें if you, क्योंकि points याद नहीं रहते हैं पहली बात तो art and culture की, ठीक है, as much as you try to revise it. दूसरा, questions इतने difficult आते हैं कि अगर आप बिल्कुल verbatim उनको divide करने लगे एंड अगर आप उस टाइप का फ्रेमवर्क बनाने लगे, राइट, कि मैं तो बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखूंगा जिसमें मुझे 10 में से 6 मिल जाएंगे और 15 में से मुझे 8.5 मिल जाएंगे, राइट, ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में, राइट? सो चेजिंग परफेक्शन इज समवॉट डिफिकल्ट टू डू इन आर्ट एंड कल्चर, और वो आपके ऊपर इट कैन बैकफायर यू। आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोई बात नहीं, इफ नॉट 6 आउट ऑफ 10 आई एम 5 आउट ऑफ 10, ठीक है, मेरा एटलीस्ट 7 मिनट में खत्म हो जाएगा आंसर, डिसेंट तरीके से खत्म हो जाएगा। इफ नॉट 8.5 आउट ऑफ 10, मे बी लेट्स से 7.75 आउट ऑफ 15, ठीक है, डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि दिस कैन कॉस्ट यू इन द वे कि आपके 2 क्वेश्चन छूट गए। मान लो एक आगे क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल implications ऑफ मिनरल ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन। If you keep thinking in art and culture questions too much, na, there's a possibility कि उस टाइप के questions पर you will compromise on the content side, and if that happens, you probably might get a 4 out of 15. The person who has written it in the best way might get an 8 out of 15, right? तो loss बहुत ज्यादा हो जाता है art and culture पे बहुत ज्यादा सोचने का, ठीक है। बट अगर आपका इस टाइप का एक्यूमेन है, अगर आप इस टाइप का एप्टीट्यूड है आपका, that you are able to write art and culture questions in the best possible manner in 7-15 minutes or 7 and 11 minutes, तो please करिए। Otherwise chronology, I think, while keeping to the demand of the question, is the best way to move forward, right? ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको ना एटलीस्ट यू आर एबल टू कनेक्ट द थिंग्स, और अगर क्वेश्चन ओपन एंडेड है तो स्पेशली ये ट्रू हो ही जाता है, ठीक है। like their influence on pillars and palaces. So Iranian traditions, they influence the Mauryan pillars, ठीक है, एक दो पॉइंट्स इसमें बता देना and done with it, ठीक है। जैसे next you can also mention that Ashoka's philosophy of Dhamma that also influence his inscriptions. Mention that, okay, I guess कौन सी 12th edict थी, 13th edict थी, जो which mentioned about the tolerance among the religions, right? So mention that thing here. Then you come to Gupta, because after Gupta, unlike cave architecture, na, you do not have too much to explore in between, क्योंकि tradition and philosophy, it gives you
a scope to go till Mughals, right? And even after that, till British as well. So इसमें जरूरी ये होगा कि आप major points पर touch करें, right? Do not confuse yourself too much in between, right? Brahmanism, यही था main philosophy during the Gupta period. Nagara and Dravida temples, which mention about the Purana story. Are you able to get what we are doing in this question? Through art and architecture, we have to tell that on that we see the influence of the philosophy, tradition, religion, which was dominant at that time, right? So when we mention this point, we say that during Mauryan period, let's say हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि during Mauryan period probability बहुत high है कि ईरानियन ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस था, राइट? कि ऐसी कोई ट्रेडिशन थी जिसमें अशोका वाज प्रमोटिंग समथिंग लाइक धम्मा, राइट? कि इक्वालिटी बिटवीन रिलीजन या समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है? तो द थिंग इज कि जितना क्वेश्चन के क्लोज रहेंगे, जितना क्वेश्चन को समझ लेंगे आर्ट एंड कल्चर में, एक बार पढ़ने पे क्वेश्चन समझ नहीं आता. रीड इट ट्वाइस, रीड इट थ्राइस, ताकि ना यू कीप as close to the question as possible, right? Then example Dashata temple, then you can mention कि ऐसा नहीं था कि only Brahmanism, right? There was a bronze Buddha at Sultanganj as well, which somewhere indicates कि it was a tolerant society, a secular society, right? That the leaders were tolerant, right? Then the arts of the Ajanta and Ellora also, because क्योंकि वहाँ पे Buddhism in Ajanta, in Ellora, Buddhism, Jainism, Hinduism, right? Of course, it propagated. One of the phases was in the Gupta period of both the thing of at least Ajanta. So this shows that Buddhism was also given some sort of incentives as well, right? कि उसको भी बढ़ावा दिया गया. This shows कि secular nature था उस time पे, ठीक है ना? Then Mahayana Buddhism was also dominant, ठीक है? या फिर it was also given respect. Example, Nalanda University was established by Kumaragupta, right? ये example you will give. Then next जो strand आता है main, अगर आप देखें ब्राह्मणिज्म के बाद somewhat set कि उसको challenge जो करता है, right? That was Bhaktism. ठीक है? तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि Bhaktism, how did it influence? And if any one of you have read 7th class NCERT, right? उसमें there is a very beautiful chapter on Bhaktism and Sufism, okay, where they explain that how Bhaktism had impacted the local cultures, right? That it led to the integration of various cults. Okay, so you'll say that local gods were given importance, like Lord Jagannath, an incarnation of Lord Vishnu, right? They were given importance, and it led to the integration of various cults, north and south, east and west. Okay, there was an idea that humanity lives above everything, right? Odisha temple, you can mention one, that Odisha temples, Jagannath, Puri, they are an evidence that a philosophy like Bhaktism, which was prevalent at that time, right? And it continued thereafter. Okay. Then you'll say, एक अच्छा point ये है, material aspects, right? Like the Kama Sutra, they were given importance in the Khajuraho temples of built by Chandelas, right? Clear? क्योंकि वो भी तो एक टाइप की philosophy है ना, right? कि materialism is what you should pursue, right? So this is one point you can mention here. ठीक है ना? So you're keeping around the philosophy. Philosophy क्या है? Your religions, right? Let's say any philosophy you got from outside, any international philosophy or मतलब external philosophy, then not religion per se, but let's say something which emerged as a result of the negative aspects of a religion. Let's say Bhaktism due to Brahmanism. वो भी एक philosophy थी फिर, ठीक है? उसकी वजह से क्या क्या influence हुआ? Then outside Bhaktism, Brahmanism, all these are spiritual things. There's a material aspect as well, right?
ठीक है, all these points are not easy to think in the real exam hall, but इसका अगर आप 70% भी लिखा है एग्जाम हॉल में ना, you manage a very good answer. ठीक है, then next you'll come on to, अब ज्यादा इसमें बीच में बातें नहीं करनी, गुप्तास के बाद the major dynasty which came was Indo-Islamic, right, and Mughals. इसको you can integrate क्योंकि ज्यादा डिफरेंस फिलोसॉफिकल साइड पे नहीं आता, राइट. ऑफ कोर्स उनके किस तरीके का आर्किटेक्चर बनता है वो सब वो है कि मीनार इस टाइम पे बनी ज्यादा, उस टाइम पे डोम्स बने ज्यादा, ऑल दिस थिंग. लेकिन इफ यू सी द फिलोसॉफिकल साइड और उसके कारण आर्किटेक्चर पर ज्यादा डिफरेंस, दैट इज नॉट वेरी मेजर, राइट. तो यू कैन इंटीग्रेट दीज टू एस्पेक्ट्स. ठीक है ना. you'll say no human depiction on the monuments, right, which was prevalent in earlier times. ठीक है. Jali was used, which showed the importance of light. Then fountains were, a way of purifying the things. Charbagh architecture, Charbagh has some relevance with Quran, right? They all indicate influence of Islam and Holy Quran, right? इस तरीके से you'll tell the thing. Examples साथ में mention कर देना 2-3, right? In this, in the Nishad Gardens of Kashmir, in Pinjore Garden, okay, whatever 2-3 things come into your mind, right? Then towards the end you can write that yes, along with that there was some integration of the cultures as well, right? They say Sikh architecture, it borrowed things from Muslim architecture as well, right? Example, Golden Temple and the dome there, right? जैसे in Bengal and Kashmir, though they built their mosques, but they followed their local tradition. right? तो इस तरीके का कुछ आप बता सकते हैं. एक पॉइंट इफ यू वांट टू, मतलब इसमें वो ज्यादा सब्सटैंशिएट हो नहीं रहा है, बट लेट्स से फिलोसफी और ट्रेडिशन नहीं है अगर क्वेश्चन की डायरेक्शन, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द राजपूत्स, राइट, and how after Mughals there was a I'll say differentiation between the cultures कि local culture ज्यादा आने लगे, right? ठीक है ना. and क्योंकि क्वेश्चन हमारा ज्यादा सिलेबस remains confined to medieval India, so that's why I have not mentioned it. Otherwise you can also mention कि उसके बाद जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर आया, right, that had Gothic influence. इस तरीके का आप मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पर कीवर्ड्स मेंशन कर देना अरेबिस्क्यू और ये सब. ठीक है. the point is कि you don't have to merely tell about the architecture, right? You have to relate it with the prevalent tradition at that time, with the prevalent religion at that time, right? This is how you keep closest to the topic, right? Again, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने गलतियां ये करी थी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Don't do this thing, right? Then one of the mistakes you can take up in this question is na, to confuse yourself and to complicate the things is philosophy tradition से हमारा वो फिर हम उसमें चले जाते हैं कि न्याय, वैशेषिका, राइट, और कौन कौन सी होती हैं वो, सांख्या, योगा, और मेडिवल वाली विशिष्ट अद्वैत, राइट. यू नो दीज थिंग्स, ऑफ कोर्स दीज आर ये वो फिलोसफीज हैं जो कि दे मेयरली रिमेन्ड टू बुक्स, राइट. ऐसा कुछ इनका खास इन्फ्लुएंस हुआ नहीं एज फार एज द आर्किटेक्चर इज कंसर्न. ठीक है. तो ओवर थिंक मत करना इस टाइप के क्वेश्चन से. कल्चर एंड ट्रेडिशन, philosophy and tradition, it means somewhere you have to equate it with religion. देखो आपको भी पता है, if you see the pattern of previous year, religion के आसपास यूपीएससी सवाल पूछता है, right? कल्चर में here they replace the term with philosophy and tradition, right? तो इतना आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है पेपर. ठीक है ना, कि जो चीज मैं मैनेज ही नहीं कर सकता, which is this thing, right?
I should not delve here, क्योंकि मैं 7-8 मिनट में सोच ही नहीं पाऊंगा, राइट? इससे बेटर है लेट मी, आई नो फिलोसफी एंड ट्रेडिशन समवेयर मीन कि कस्टम, रिलीजन, राइट? एंड वो यूपीएससी पूछता भी है, मोर और लेस वो यही पूछना भी चाह रहे हैं, राइट? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? Any doubt to anyone? Next I gave you the question deliberately. I wanted to see if you are able to relate the things or not. Has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate. Can anyone explain me? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? सर जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोस्टली वही सब चीजें ही हैं, मतलब जैसे कि रिलेवेंस अभी लूज हुआ है कि नहीं, जैसे अपन ने डिस्कस किया था वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, या फिर जिनका इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन जो है DICCI वगैरह, वो सब चीजें का ही ये सब चीजें डिस्कस करनी आई थिंक। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते हो तो क्या सोच कर आप आंसर लिख रहे होगे इसका, कि पूछ क्या रहा है? कास्ट सिस्टम कैसे मॉर्फ हो गया है, नई आइडेंटिटी ले ली है, और किस तरह से वो डाइल्यूट हो गया है, पर उसने रेलेवेंस नहीं खोई है। नहीं, आई से इसका और बेटर इंटरप्रिटेशन अगर कोई दे पाए, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल वर्बैटिम क्वेश्चन क्या इंटरप्रेट करवाना चाह रहा है आपसे। देखो, इंडियन सोसाइटी है, यू अंडरस्टैंड इट इन वेरियस वेज, राइट? कि रिलीजन है, फैमिली है, ठीक है, एंड दिस टेलिंग यू मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना? तो कल्चर मतलब रिलीजन है, अलग अलग रीजन्स हैं, ज्योग्राफी है, ये है वो है, राइट? इससे आप इंडियन सोसाइटी को समझते हैं। वो कह रहा है कि इस कंटेक्स्ट में क्या कास्ट एज अ फैक्टर हैज लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, मतलब क्या हम कास्ट को हटा सकते हैं एंड इवन देन कैन वी थिंक अबाउट इंडियन सोसाइटी? दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, क्या कास्ट ने अपनी रेलेवेंस खो दी है इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? थोड़ा सा देखो घुमाया हुआ क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज बिट डिफिकल्ट। वो तो just because we discussed, more or less the content related to this question in the last class, na, you are feeling somewhat okay with this question, but the question's language is not so easy, right? I hope you're clear with this thing. कोई डाउट किसी को? सर ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, मतलब मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी है, हाँ, और इसमें कास्ट ने अपना रोल खो दिया है, ये बताना चाह रहा है, रेलेवेंस खो दिया है अभी इस टाइम के अंदर, पुराने मतलब टाइम मान के। लो, हाँ मान लो आप हो 1970, मतलब मान लो 1970 में आपके ग्रैंडफादर, राइट? 1990 मान लो कि आपके फादर वर समवेयर 20-25 है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एन एज जहाँ पे समझ होती है, राइट? एंड यू आर इन 2020, ठीक है, कि आप 2025 के हैं, लेकिन आप इंटरप्रेट करते हैं इंडियन सोसाइटी को, मल्टीकल्चर इंडियन सोसाइटी, मतलब योर ग्रैंडफादर इंटरप्रेट्स इट एंड हिल से रिलीजन, रीजन, किसी ने उनको कहा, किसी ने आप तीनों को असाइनमेंट दिए कि मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी का मतलब समझाओ मुझे, मेक मी अंडरस्टैंड मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, राइट? एंड वेरी स्ट्रांगली ही विल से कास्ट एज वन फैक्टर, राइट, मोर और लेस, ठीक है ना? देन योर फादर विल से रिलीजन, रीजन, ऑफ कोर्स एवरी ऑल द पॉइंट्स रिमेनिंग द सेम, एंड समवॉट अ रोल ऑफ कास्ट, या definitely a role of caste, इस type का. When it comes to you, you'll say religion, region,
एंड कास्ट कहीं जाके ना आपके लास्ट में आएगा, या फिर कास्ट हैज मॉफ्ड, ठीक है, कास्ट एज अ फैक्टर हैज मॉफ्ड, ठीक है, दिस इज व्हाट Basically इट इज हम ट्राइंग टू। we are giving precedence to other factors like religion, language, region above caste. हाँ, आप खुद भी देखिए, खासकर अगर आप अर्बन एरियाज में हैं, अगर आपसे कल्चरल डाइवर्सिटी का इंडिया का पूछें, तो आज आप कास्ट को ऐसा नहीं है कि पहले 2-3 नंबर्स में बोल देंगे, राइट, वो बाद में ही आएगा, राइट। तो वही बात है कि क्या कास्ट ने अपनी रेलेवेंस खो दी है इंडियन कल्चर को समझने में, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घूमा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब ये है, राइट। आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज मुश्किल है थोड़ी, आगे ऐसी लैंग्वेज आए और समझ आए, बस दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू दिस क्वेश्चन। अदरवाइज कंटेंट इसमें ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। यू विल से So, दैट यस कास्ट हैज लॉस्ट रेलेवेंस, उसमें आप क्या क्या कहेंगे, इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिज, राइट, वही सब बातें करनी है, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलर पैटर्न ऑफ सोसाइटी, क्लास इंस्टेड ऑफ कास्ट, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। But yes, caste still remains a major factor. It is deeply rooted. ठीक है, वोट बैंक्स पॉलिटिक्स, politicization of caste, casteization of politics, honor killings and all this thing, right? यही सब बात करनी है। कोई डाउट किसी को? Any doubt in anyone? Any doubt to anyone? क्वेश्चन इंटरप्रेट कर पा रहे हो थोड़ा सा? आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट आर यू एबल टू गेट कि भाई कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन घुमाया हुआ था उन्होंने? सर इसमें इलॉबरेट विद इलस्ट्रेशंस का क्या मतलब होगा? इलस्ट्रेशंस का यही मतलब है कि आप लिख दो रोहित वेमुला एपिसोड, इस टाइप का कुछ लिख दो, राइट। DCCI ये बता दो, ठीक है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, BSP SP ये बता दो, ठीक है, क्योंकि केस स्टडीज तो बताने का आपके पास टाइम नहीं होता कि आप 6-6 लाइन की केस स्टडी बता रहे हैं इन द कास्ट। तो इलस्ट्रेशंस का मतलब ये है कि लिस्ट इलैबोरेट विद एग्जांपल्स, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट and casteization of politics, you just leave it, right? That it is mobilization on the basis of votes. Give it with examples, right? And then you say that Jats, Gurjars, Marathas and all these things, यहाँ पर भी कैसे कैसे, मतलब वो specifics आने चाहिए यहाँ, right? देखो, जहां पर आपके पास केस स्टडीज टाइप का कुछ है, इलस्ट्रेशंस का लिटरल मीनिंग वहां पे उस टाइप का ट्रांसलेट होगा, लेकिन कास्ट वाले क्वेश्चन में हम केस स्टडीज तो प्रिपेयर करके बैठे नहीं होंगे, विल बी जस्ट हैविंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट, राइट। तो वही बताना है यहाँ। एंड एज आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास में कि ज्यादा कंफ्यूज मत करना डायरेक्टिव्स को लेकर, राइट। 3 टाइप के मोरलेस देयर आर डायरेक्टिव, और हर टाइप मतलब करना आपको एक ही चीज होती है, यू जस्ट एक्सप्लेन द थीसिस स्टेटमेंट, कुछ उसका एंटी थीसिस, एंड उसको साथ साथ आपको एग्जांपल्स देने। जब सिर्फ वेटेज का डिपेंड करेगा कितना आएगा, व्हाट वुड बी द वेटेज, इफ इट इज क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, थीसिस एंटीथीसिस को 50-50 हो जाता है, राइट। एग्जांपल्स भी आप दे रहे हो, इफ दे से elaborate with examples, elaborate with illustrations, राइट, तो वहां पर आपको उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी कि इसके बिना मेरा आंसर ना रह जाए, राइट। मान लो कहीं पर उन्होंने नहीं लिखा है इलैबोरेट विद एग्जांपल्स, और वहां पर आपने छोड़ दिया, हो सकता है 10 मार्क्स में से आपको मिले 5 नंबर, जिसने लिखा उसको मिल जाए 6 या 6.5 नंबर, ठीक है। मान लो 10 मार्कर में यही क्वेश्चन आ गया जहां पर लिखा इलैबोरेट विद इलस्ट्रेशंस, आपने नहीं लिखा, यू विल गेट अ 3/10, ठीक है, पर्सन विल गेट a 6/10, राइट। दीज डायरेक्टिव्स टेल यू कि इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज मत कर जाना, राइट। हाँ,
लेकिन उसको हर जगह मेंशन करोगे तो हमेशा ही फायदा रहेगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. Yes, sir. Next is India has immense potential of solar energy, though there are regional variations in its development. Elaborate. ठीक है. इसमें जो मेन यूपीएससी ने फंसाने की कोशिश की थी ना, वो ये वर्ड था. लोगों ने इसको इंटरप्रेट ऐसा किया, India's immense potential of solar energy, though there are regional variations in it. They did not interpret it in this manner. They're saying regional variation in its development. When you say about the regional variations of development, you tell about कि ठीक है, geographically इस aspect के लिए, you know, regional variation है. The tropical states are getting more, the subtropical will have seasonal and all these things. लेकिन और भी तो aspects है ना regional variation. कैसी गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसा कैपिटल होगा, उस इलाके, उस स्टेट की, उस रीजन की कैसी गवर्नेंस है. ऑल दीज एस्पेक्ट्स, राइट, दे डिटरमिन कि सोलर पावर वहां पे एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बनेगा या नहीं बनेगा. ठीक है. दिस गेव यू दिस डेवलपमेंट वर्ड गेव यू अ हिंट कि आपके पास और भी चीजें एक्सप्लोर करनी, राइट. I hope you agree with this point. Okay. They are not saying that, but though there are regional variations or though there are regional geographical variations, इस टाइप का नहीं कुछ बोल रहा. ठीक है. सोलर पावर के डेवलपमेंट में रीजनल वेरिएशंस हैं और उसके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर जोग्राफिकल है, बाकी फैक्टर्स नॉन जोग्राफिकल भी है, राइट. दोनों को डिस्कस करना है ना. कुछ लोगों ने, क्योंकि 2 पॉइंट से ज्यादा तो आप लिख नहीं सकते फिर जोग्राफिकल. ये बताओगे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ज्यादा ज्यादा कोस्ट वाला कुछ लिख देता है कोई, माउंटेन्स और लीवर्ड विंडवर्ड पे चला जाता है. इससे ज्यादा बीटिंग अराउंड द बुश कहूंगा मैं इसको, कि आप कुछ भी फिर बनाना चाह रहे हो फिर. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी चीजें हैं उन पर यू फोकस करो, राइट. ठीक है ना. सम पीपल रोट कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं आती है, एंड सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल नॉर्थ ईस्ट. लीवर्ड साइड पे वो ज्यादा अवेलेबल है, विंडवर्ड साइड पे कम अवेलेबल है, तो वहां पर ज्यादा होगी, वहां पर कम होगी. मतलब in any way they're trying to relate it with the geographical factor, right. ऐसा नहीं करना है. It looks foolishness, right. And it also in a way it indicates कि आपने ना ठीक से सवाल पढ़ा नहीं, right. आई होप थोड़ा सा ये पॉइंट आप समझ गए. यही मेजर कैच था इस क्वेश्चन के अंदर. डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं. द मोस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन वुड बी सोलर एनर्जी डिफाइन कर दी. ठीक है. एनर्जी टैप्ड बाय द सन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे. ठीक है. या फिर यू कैन स्टेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी, दैट in the recent times it has emerged among the most important forms of renewable energy. If you can also substantiate that in India, solar energy today contributes about 38 gigawatts out of this many gigawatts, which is about this much percentage of our total electricity generation. Anyone who can tell me the exact or the approximate data about solar energy? क्या प्रोडक्शन है हमारी आज की? सर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में तो अराउंड 48% शेयर है सोलर एनर्जी का. टोटल क्या है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, टोटल कितनी है? सर वो यूनिट्स में तो नहीं पता कितना है. नहीं, मुझे इतना जो लास्ट मुझे याद है दैट आई रिमेम्बर इज कि सोलर एनर्जी तो इंडिया की नियर अबाउट 38 to 40 गीगावाट्स है. Okay, so it is
Yes, 166 gigawatts it is showing that India achieves 166 gigawatt of renewable energy capacity till October 2022. बस 40 ही है, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ. And if we say 40 and 166, somewhere around 25% होना चाहिए. तो बट आई रिमेम्बर कि 40 गीगावाट से एग्जैक्ट शेयर ऑफ सोलर एनर्जी वो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. ठीक है, तो वो देख लेना, वॉट एवर इज द डेटा अराउंड टोटल सोलर एनर्जी, उसको यू कैन मेंशन है, या तो डेफिनेशन से या फिर इंपॉर्टेंस से या सोलर डेटा भी बता सकते, राइट. देन नेक्स्ट बॉडी में दो चीजें उन्होंने पूछी है, पोटेंशियल एंड रीजनल वेरिएशंस, राइट. इफ इट इज अ 10 मार्कर सिर्फ इतना ही लिखना, राइट. इफ इट इज अ 15 मार्कर एक छोटा सा रे डायग्राम बना सकते हैं आप, इस सिग्निफिकेंस क्या है, राइट, सोलर एनर्जी का. दिस इज अ वे टू टेल द एग्जामिनर कि आप समझते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, राइट. Just to tell the examiner, see, I understand there's a difference between significance and there's a difference between potential, that I do not confuse the two terms. ठीक है ना, this gives you a scope in a 15 mark. ठीक है, I hope ये समझ आई बात आपको. इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज कम कार्बन एमिशन है, जीरो कार्बन एमिशन है, ये इंपॉर्टेंस है. इज इट द पोटेंशियल, इट इज मोर ऑफ अ सिग्निफिकेंट. पोटेंशियल क्या है हमारे पास, it is one of our strengths, that is why it is our potential, right. तो ये बता देना. देन पोटेंशियल के ज्योग्राफिकल, ठीक है, इसमें ना देखो ज्योग्राफिकल में सबको पता है कि आप मोर और लेस एक ही चीज लिखोगे. कुछ कुछ स्पेसिफिक्स लिखना कैन गिव वैल्यू टू योर आंसर. वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, 300 days of direct sunlight, ठीक है, with high incidence of sunlight, right. ट्रॉपिकल स्टेट्स ह्यूज पोटेंशियल फॉर टैपिंग सोलर एनर्जी, कुछ कुछ स्टेट्स के नाम मेंशन कर देना है, राइट, या फिर एक मैप बना देना. ठीक है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखा के यहाँ से, राइट. एंड these are the tropical states, high potential, subtropical states, relatively low potential, right, इस तरीके का कुछ. ठीक है ना. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट. अगेन बिकॉज गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, दैट गिव्स अस अ पोटेंशियल ना, कि वी कैन एक्सपैंड इट इन द फ्यूचर. ठीक है, यही चीज मतलब इकोनॉमिक्स में काफी बार ये चीज यूज होता है, ये फ्रेमवर्क. पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, यू नो. पोटेंशियल मतलब कि सम फैक्टर्स आर वर्किंग इन योर फेवर एंड इन द फ्यूचर यू कैन अचीव दैट. व्हाट आर दोस फैक्टर्स? द ज्योग्राफिकल फैक्टर इज वर्किंग इन योर फेवर, राइट. लेट्स से हम बात करें लिथियम इंडस्ट्री की, राइट. उस केस में दिस फैक्टर इज नॉट वर्किंग फॉर अस, राइट. उस केस में दिस फैक्टर इज वर्किंग, अदर फैक्टर्स आर वर्किंग, राइट. इनके कारण पोटेंशियल है, राइट. देखो दिस टाइम आपको थोड़ा सा ये बहुत बेसिक चीज लग रही होगी कि व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बट सम स्टूडेंट्स डू कंफ्यूज दिस, राइट. इंपॉर्टेंस है, पोटेंशियल है, समझ नहीं आ रही ये चीज. ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों है, एक लाइन में बता दीजिए कि वी हैव रिवाइज्ड द टारगेट्स. ठीक है, पहले थे 20, नाउ वी हैव 100 गीगावाट्स एंड क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स आल्सो वी हैव रिवाइज्ड, राइट. अब क्या है करंटली, 500. ये है ना आई गेस 450. अभी शायद पंचामृत में 500 करके हैं. नहीं, वो तो कुछ 50% करके था कि 50% ये करना है. 500 कर दिया था क्या पंचामृत में? आप भी ना अपने साथ इन दिस टाइम ना, ये दिस इज अ गुड हैबिट
keep googling these type of things, right? This जो आप गूगल करते हैं वो it stays in your head for a longer time. Yes, 500 gigawatt 55 मिनट, right? वो 500 तो है 55 मिनट में, right? करंट स्टेटस क्या है? 60% thermal, solar energy around 40% of renewable energy, immense potential, right? क्योंकि थर्मल एनर्जी से हमें वापस आना है, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस, एंड क्योंकि सोलर भी हमारी डिसेंट नंबर पे है, तो दैट गिव्स अस द पोटेंशियल टू एक्सप्लोर इट, राइट, टू फर्दर एक्सपैंड इट, राइट। एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। आज का जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज अनसस्टेनेबल, पोल्यूटिंग है, राइट। और सोलर एनर्जी जो कि हम बढ़ाना चाह रहे हैं वो डिसेंटली है भी हमारे पास, तो दैट्स व्हाई इट इज अ पोटेंशियल थिंग, राइट। देन सूटिंग इंडियाज डिमांड, डिसेंट्रलाइज्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला एजेंडा हमारा सूट करता है इसको, राइट। दैट्स व्हाई हमारा पोटेंशियल है यहाँ पे। कर अगर इसमें हम तरीके से करें तो इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म द थिंग्स, राइट। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव इज वन सोलर वन ग्रिड वाला, वन सोलर वन ग्रिड, या फिर वही उसी का एक्सटेंशन इंटरनेशनल सोलर एनर्जी, है ना। एंड नेक्स्ट, इंपोर्ट डिपेंडेंसी वालों को भी ना एक पॉइंट आप डाल सकते हैं कि high import dependency, therefore if we capitalize on our production we have high potential, right? It is just a way of presenting the things. Although import dependency is one of the weaknesses of India's solar production, लेकिन किस तरीके से आप पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं, आप उसी को एक पोटेंशियल भी दिखा सकते हैं कि अगर हम कैपिटलाइज कर लें इसको, ठीक है। इस पॉइंट को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से लिखकर छोड़ देंगे, इफ यू जस्ट लीव इट इन दिस वे, तो दिस कैन गो अगेंस्ट यू, फिर एग्जामिनर सोचेगा कि दिस पर्सन हैज नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, राइट। रीजनल वेरिएशंस इन डेवलपमेंट, अब बताएंगे ज्योग्राफिकल वेरिएशन, ठीक है, ट्रॉपिकल वर्सेस सब ट्रॉपिक्स, इंटरमिटेंसी का इशू है, हेंस लेस डेवलपमेंट इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। It requires high investment, high capital investment, and this capital investment vary from state to state. यहाँ पर आप regional variation बता रहे हैं development में। For example, coastal state उड़ीसा भी है, coastal state तमिलनाडु भी है, ठीक है, but you know कि both do not have the same level of capital investment. या चलो तमिलनाडु को छोड़ दो, compare it in the extremes. You compare Gujarat and Odisha, right? The amount of capital investment both can mobilize, ठीक है ना, कोर्स उस कारण से डिफरेंस आएगा। देन स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स एंड लैंड अवेलेबिलिटी, जहां पर आपके पास लैंड के इश्यूज होंगे वहां पर आपकी सोलर एनर्जी की डेवलपमेंट के चांसेस कम है, राइट। फॉर एग्जांपल यूपी बिहार, हाई डेंसिटी लैंड बहुत कम है, that leaves lesser scope for you to development, thus creating regional development, regional variations in solar development, ठीक है। issues of affordability, link it with the levels of development of different states, right? अगर अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि सोलर एनर्जी इज नॉट वन ऑफ दोस चीपर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ना, वो तो ठीक है वेरी करता रहता है प्राइस में, बट अगर खरीद पाओगे तभी तो उसको एक स्टेट प्रोड्यूस करना चाहेगा या प्रोक्योर करना चाहेगा, ठीक है। देन रीजनल में आप रूरल वर्सेस अर्बन भी डाल सकते हैं, ठीक है, अनदर वे ऑफ एक्सपैंडिंग द थिंग्स, कि रूरल में कोर्स अफोर्डेबिलिटी वाला इशू है, लैंड एक्विजिशन वाला, एंड in the urban areas more due to space issues na, rooftop solar projects will be more of a doable thing, right? In rural areas projects like kusum are going to be more successful, ठीक है, at least in the present scenario, ठीक है ना। देखो, we are not compromising on the regional word, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोले जा रहे, ठीक है। at in every point we are substantiating and decently substantiating, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता रहे, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट वन को, डेवलपमेंट वर्ड को भी वी आर यूजिंग, ठीक है ना। देन यू कैन से स्टोरेज वाले इश्यूज नहीं जब तक रिजॉल्व होते हैं ना, तब तक टेकिंग दीज
this solar energy to far-flung villages and hamlets will be very difficult, right? और फिर वहां पे कोई भी 2-3 नाम ले देना, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, जो आपके मन में आए, उत्तराखंड, हिमाचल, राइट? टोपोग्राफिकल वेरिएशन होगा इनमें, एंड टेकिंग दिस सोलर एनर्जी टू दीज difficult terrains will be difficult until unless the storage issues are resolved, right? जब तक आप सोलर एनर्जी को टैप करके उसको इनडायरेक्ट तरीके से नहीं दे पा रहे, राइट? ठीक है ना? देखो, पहले यू प्लेड विद द मेन पॉइंट्स, ठीक है, इन दिस वे, देन व्हेन यू फेल्ट यार 2-1 पॉइंट और चाहिए, then you explored other dimensions as well, but you did not waver from the demand of the question, right? Any doubt to anyone? सर ये जीएस 1 का क्वेश्चन था, तो रीजनल वेरिएशंस में ज्यादा अपन ज्योग्राफी के पॉइंट्स नहीं लेंगे? हाँ, जोग्राफिकल ही लिए। आप बताइए कहाँ पर ज्योग्राफी नहीं आई? मतलब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, these things are all made up, right? लेकिन ये इतनी भी बनाई हुई नहीं है कि इलॉजिकल लगे, राइट? I am, as much as I can see, all these are geographical points. मतलब इसमें अपन ये नहीं बताएंगे इक्वेटर के पास है तो बादल बन रहे ज्यादा, वो रेज नहीं आ रही, वैसा कुछ? नहीं नहीं, वो तो यार ऐसे लिखोगे तो बता पाओगे। एक 10-15 मार्कर के क्वेश्चन में तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल। इक्वेटर का कैसे लिंक कर रहे हो आप? इंडिया का क्वेश्चन है ये। हाँ मतलब थोड़ा उस साइड नीचे की तरफ है तो वहां पर साउथ इंडिया में। नहीं देखो, जस्ट बिकॉज यू वांट टू गिव अ ज्योग्राफिकल टिंज टू द आंसर, दैट डज नॉट मीन कि आप क्वेश्चन की स्कोप को ही पूरा डिमिनिश कर दें जो वो पूछना चाह रहे हैं। जब बात ही वो इंडिया की कर रहा है, तो क्या 6 डिग्री है ना जहाँ से हमारा शुरू होता है, राइट? और 6 भी कहाँ से? ये तो 8 ही से शुरू होता है। 6 तो आई गेस ये नीचे से, राइट? जो अंडमान निकोबार वाला है ना। मुझे करेक्ट मी इफ आई एम गेटिंग द फैक्ट्स रॉन्ग, ठीक है? तो इक्वेटर 0, मतलब इक्वेटर वाला तो आप ये कहोगे ना 5 to 5 डिग्री वाला। इक्वेटर की तो बात ही नहीं आती। लेट्स से दे आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑन इन द वर्ल्ड सिनेरियो ना, तो स्टिल यू कैन मेंशन दिस पॉइंट, ठीक है? इक्वेटर में क्लाउड फॉर्मेशन के कारण ऑल्दो हायर इंसिडेंस है, बट दैट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू द थिंग्स। क्लाउड की वजह से मैक्सिमम इंसोलेशन इज इन द ट्रॉपिक्स। लेकिन बहुत दूर से खेलने वाली बात होगी। एक्सप्लेन करने के लिए 4-5 लाइन लिखनी पड़ेगी और एग्जामिनर को समझने के लिए 2 मिनट का समय लगेगा कि क्या पूछना, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से है, राइट? आई एम नॉट एबल टू कोरिलेट कि आप इक्वेटर वाला कैसे यूज करना चाह रहे हैं। ऑल्दो आई सॉ इन योर आंसर यू डिड मेंशन दैट थिंग, बट दैट इज नॉट अ वेरी मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले रखे हैं। वाज अबाउट टू टॉक अबाउट दैट थिंग लेटर आफ्टर द सेशन, है ना? सर आई थिंक उनका क्वेश्चन ये था, जैसे लास्ट सेशन में हमने आई थिंक ब्लू रेवोल्यूशन का क्वेश्चन था ना, तो मोस्टली अपन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ही कंसीडर कर रहे थे, बाकी इंस्टीट्यूशनल या स्ट्रक्चरल इश्यूज को उतना नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे अपन बाकी चीजों पर भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। आई थिंक वो उनका डाउट है। इसके अलावा हाँ, डाउट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो इक्वेटर वाला पॉइंट ना आई एम नॉट एबल टू रिलेट इट। इसके अलावा एनी ज्योग्राफिकल फैक्टर व्हिच यू कैन थिंक अबाउट? देखो, पॉइंट्स तो जनरल रहेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स नहीं है बियॉन्ड द पॉइंट ना, तो उसको ज्योग्राफिकल बना दिया जाए, ठीक है ना? हेयर एट एवरी पॉइंट वी हैव ट्राइड टू मेक दिस पॉइंट ज्योग्राफिकल। 2 तरीके से आप ज्योग्राफी बता सकते हो।
एक स्पेशल तरीके से जाकर, राइट। एक है कि आप थिंकर्स वगैरह के नाम डाल दो, थ्योरीज के नाम डाल दो। फॉर अ जीएस स्टूडेंट दिस इज इम्पॉसिबल टू डू, राइट। यहाँ पर दिस इज पॉसिबल फॉर यू टू डू। जहां तक रही ना, अब अगर आप उस टाइप के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हो कि यू नो एड्रेट, क्यूबेक और लीवर्ड, विंडवर्ड प्लेटू पे ज्यादा होगा, प्लेन्स पे कम होगा, तो दीज आर नॉट वेरी एस्टैब्लिश्ड थिंग्स। ये तो ये है ना कि आप एक लोकल वेरिएशन को देखो एंड यू आर लाइक प्लेटो पे ज्यादा होगा एंड दिस स्टडी हैज सेड कि यहाँ पर कम होगा। ठीक है, ऐसा कुछ एस्टैब्लिश तो नहीं है ना कि इंडिया में इस प्लेटो पे ज्यादा सनरेज गिर रही है, उस पे कम गिर रही है। ठीक है ना, बहुत ही माइक्रो लेवल स्टडी चाहिए होगी इधर तो। जहां तक रहा फिशरीज वाला सवाल ना, वहां पर देयर वर एस्टैब्लिश्ड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिक्लाइन या फिर इश्यूज विद फिशरी इन इंडिया। ठीक है ना, माय पॉइंट ऑफ सेइंग देयर वाज कि उससे मतलब नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को बाद में लिखना होता है। वहां पर हम ज्योग्राफिकल को, वो फैक्टर्स को लिख रहे थे जहां पर कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, राइट। यहाँ पर आप अगर उल्टे सीधे फैक्टर्स को लाओगे इन पोजिशन, ठीक है, तो वो रादर देन बीइंग ज्योग्राफिकल ना, वो इलॉजिकल ज्यादा लगेगा। ठीक है, इज ट्राइंग टू मेक अप द थिंग। आप समझ रहे हैं इसको? यस सर। हाँ बिल्कुल, फ्लोटिंग सोलर पैनल भी आप यूज कर सकते, बिल्कुल उसको यूज कर सकते। ठीक है, दिस इज आई एम टेलिंग यू, देखो एज मच एज आप प्रीलिम्स में पढ़ते रहेंगे, जो यूनिक पॉइंट्स आते रहेंगे, यू विल कीप ऑन इनकॉर्पोरेटिंग देम, राइट। बट इन अ जनरल सेंस आप कौन क्या एक डिसेंट आंसर मैनेज कर सकते हैं, राइट। ठीक है ना, नेक्स्ट इज what are the environmental implications of the reclamation of water bodies into urban land use? Explain with examples. Just trying to confuse you with the language of the statement. Question कुछ नहीं है, water whatever way, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, उसके कारण क्या क्या एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, राइट। कोई डाउट क्वेश्चन को समझने में किसी को, जिसने एनवायरमेंट। सर आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, कि मेरे साथ ही हो रहा है किसी और के साथ भी हो रहा है? हाँ थोड़ी हुई थी। अभी ठीक है, इज इट फाइन नाउ? नाउ इट्स फाइन। I'm saying, were there any issues with you in understanding the question? सर स्टार्टिंग में रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज समझ में नहीं आ रहा था मुझे। Reclamation of water bodies वही है कि वाटर बॉडीज को हटाकर लैंड बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो बस इनिशियली आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, यू विल डिफाइन इट, क्रिएटिंग लैंड बाय सर जब रिमूविंग वाटर। जब रियल टाइम क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आता है ऐसे वर्ड्स, तब जब समझ में नहीं आता तो हिंदी में मतलब समझ में आती हैं कैसी चीजें हिंदी। हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना, थोड़ा मुश्किल ही रह जाता है उधर। अब पता नहीं रिक्लेमेशन को उन्होंने कैसे लिखा होगा, राइट। अगर तुमने ऐसा लिखा है कि जमीन को बनाने के लिए पानी को कुछ करना, तो व्हाट इसको तो समझ आ जाएगा। रिक्लेमेशन अगर लिखा ही पूरा हिंदी के टर्म में, इट विल बी डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट यू नो द कंसेप्ट। इतना तो आपको पता है ना कि रिक्लेम होती हैं चीजें, राइट। तो वहीं से रिलेट करना था। एंड एटलीस्ट एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिक्लेमेशन, वो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रही हैं चीजें कि इसी के आसपास कुछ पूछना चाह रहे हैं, राइट। और जब हम अर्बन एरियाज की हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि लॉस ऑफ वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं क्योंकि अर्बन एरिया बढ़ रहा है, राइट। अब वो चाहे नेचुरल हो, रिक्लेमेशन इज मोर ऑफ अ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस, राइट। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर दें, क्रिएटिंग लैंड बाय रिमूविंग वाटर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड। ठीक है,
ड्यू टू अर्बनाइजेशन, डेटा वगैरह देना वो बता देना, या फिर द प्रेजेंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज दिस व्हिच हैज given way to reclamation of land in various ways. वो I'll not advise it, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना आपसे जानना भी चाह रहा है कि आप रिक्लेमेशन ऑफ लैंड को जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो डिफाइन करके देन मूव ऑन टू अर्बनाइजेशन विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी, राइट। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली ना मुश्किल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ की डायमेंशंस क्या क्या सोचें। ठीक है, आपको पता है एक वाटर बॉडी है, अगर इसमें देखें हम मेन चीज वाटर के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी रीड अबाउट वाटर एज अ होल, pollution, right? As far as the implication is concerned, one is pollution. Okay, so one aspect is pollution on which I can expand, right? Next is biodiversity is another aspect on which I can expand. Another is overall ecology of water body. ठीक है, ओवरऑल उसका कैसा फ्लो है, क्वालिटी है, एंड ऑल दीज। तीन तो हमें ये एस्पेक्ट्स मिल गए, राइट। अब इसके साथ इफ वी play with water body, because this thing is working in the overall environmental scenario as well, therefore there's a possibility that it's that will have repercussions outside as well, right? ये तो हमने बात कर दी inside the water body, right? Environmental implications के, when we play with it there will be some sort of repercussions in the form of hazards, and क्योंकि floods वगैरह आप पढ़ते ही हैं तो वो नेचुरल पॉइंट आपके दिमाग में आएगा ही, राइट। अनदर इज क्लाइमेट वाला, इसका एक एस्पेक्ट है, राइट। ठीक है ना, सी वाटर रिलेटेड डायमेंशन ही अगर आपको पता है, इफ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट ना, तीन चार पांच पॉइंट तो वहीं से बन जाते हैं। यू जस्ट नीड टू नाउ एक्सपैंड द थिंग, राइट। इसमें एक फ्रेमवर्क मैंने कहीं देखा था कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे आया क्वेश्चंस, तो लैंड, वाटर, एयर और लाइफ, इन चारों चीजों में फिर सब पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। लैंड में इरोजन हो गया, वो लैंड डिग्रेडेशन वो सब हो गया। एग्जैक्टली, ये लाइफ आ गया, ये इंटरनल लाइफ आ गई, राइट। एक इसके बाहर भी लाइफ होगी, फिर इकोलॉजी इज मोर और लेस वो बायोस्फीयर वाली चीज में आप जा रहे हैं कि ओवरऑल एस्पेक्ट पे भी फर्क पड़ेगा, राइट। दिस इज द कोर वाटर वाला एस्पेक्ट हो गया, राइट। ठीक है ना, तो डैमेज ऑफ वाटर इकोलॉजी, क्वालिटी, फ्लो, एग्जांपल यमुना फ्लड प्लेन्स, राइट, उसकी इकोलॉजी को डैमेज हुआ। एग्जांपल डल लेक, राइट, जो कंस्ट्रक्शन हुई, इकोलॉजी गॉट इम्पैक्टेड। ठीक है, then flooding due to encroachments, water bodies they act as sponges, right? They absorb the excess water and all these things, right? Release it at the right rate. Okay, flooding as in higher incidence and higher intensity, right? इस टाइप के keywords अगर mention करोगे ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इंसिडेंस भी ज्यादा हो रहा है, पर ज्यादा आ रही है, एंड इंटेंसिटी में भी ज्यादा आ रही है, राइट। एग्जाम्पल चेन्नई जेन के जो दो तीन आपको याद हो वो बता सकते हो, छोटा सा अगर मैप बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, राइट। या फिर जो यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं, जिस जिस एग्जाम्पल के डिस्कशन हो रहे हैं उसी का एक मैप बना सकते हो, प्लेसेस को यू कैन शो देम, राइट, ऑन द मैप। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर यू टू शो द मैप। नेक्स्ट इज ये वाला आ गया पोल्यूशन वाला एस्पेक्ट, राइट। अब ये इस तरीके से आपने सोचा है, जैसा हमने कहा, थोड़ा सा अगर उसको इस तरीके से ना बताए तो ज्यादा बेटर है, राइट। कीप जम्बलिंग द वर्ड्स, या फिर ऐसा बता सकते हैं कि एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस रिलेटेड टू द हाइड्रोस्फीयर, ऐसा बता दिया। हैजार्ड, नेचुरल हैजार्ड रिलेटेड इम्प्लीकेशन, इस तरीके से बता सकते, राइट। वरना दीज आर सेल्फ सफिशिएंट सब्सटैंशियल पॉइंट्स जो कि यू नो खुद में भी स्टैंड करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि दीज आर वेरी
स्टैंडर्ड पॉइंट्स की, इनको तो आपको स्ट्रक्चर करना ही चाहिए था अलग से, ठीक है ना. वाटर इकोलॉजी इज अ सेपरेट पॉइंट, पोल्यूशन इज अ सेपरेट पॉइंट, ठीक है, फ्लडिंग इज अ सेपरेट पॉइंट. नेक्स्ट इज स्पीशीज एक्सटिंक्शन व्हिच इज रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. ओके, वी वर ऑन पोल्यूशन. 2022 से कीवर्ड आया कि किडनीज, द एक्ट एज किडनीज, राइट, तो उसको यूज कर लो, राइट, as they absorb heavy metals and filter nutrients, right. Species extinction due to increased BOD, biological oxygen demand, hot water release, example हुसैन सागर लेक इन तेलंगाना, ठीक है. कोई भी ऐसा, जितना आपको लेक्स याद है और आपको पता है कि ये लेक बिल्कुल ही अच्छी एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना, अगर तो इफ यू नो कि इट इज इन द बेस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो मत करना है. लेकिन अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि कहानी खराब ही चल रही है उस लेक की, तो आप मेंशन कर सकते हो, सेफली यू कैन मेंशन. ओनली इन वन केस यू विल बी इन ट्रबल, अगर एग्जामिनर तेलंगाना का नहीं मिलेगा, राइट, तो फिर आप फंस जाएंगे उधर. बट इतना हम खेल सकते हैं, राइट. एनवायरमेंटल hazards, एग्जांपल earthquake, landslide, provide as protection. अगर वो डैमेज होंगे, वो वाटर बॉडीज डैमेज होंगी, तो वहां पर भी environmental hazards they will impact us. Climate, they'll act as a climate source, climate change का source, right, rather than acting as a carbon sink. Urban heat island, you can understand this concept, right. Impact on the moderating effect, that is more number of heat waves in future, right. क्लाइमेट मॉडरेशन होती है ना थ्रू वाटर बॉडीज, वो नहीं हो पाएगी इसमें. वेर एवर पॉसिबल यूज द टर्म्स लाइक प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, ठीक है. और देयर आर फोर टाइप ऑफ सर्विसेज: प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, एंड आई गेस एस्थेटिक सर्विसेज. फोर्थ वन इज आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है. Next is you'll say conservation is imperative. We need to explore first the other land to expand, okay, like the abandoned land, and then conduct environmental impact assessment. High flows, wetland rules, or etc. etc. They are steps in the right direction, right? एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने बहुत ही लिख से, अगर ये स्कोप ऑफ द क्वेश्चन है एट मैक्स, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं. One student went here, यहाँ से यहाँ चलते चलते, and he connected it to global hunger index, ठीक है. इतना भी दूर नहीं जाना, ठीक है. इससे पॉवर्टी आ जाएगी, हंगर आ जाएगा, एंड ऑल दिस. वो इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज अच्छा क्वेश्चन था जिस साल आया था, थोड़ा सा घुमाया था 21 में. यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मेन स्ट्रीम नॉलेज. ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, कैसे ट्राइब्स के अंदर नॉलेज दी जाती है उनको ओवरऑल. अब इस टाइप के सिस्टम जब वर्ड आ गया ना, अगर इशू आ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझो सिस्टम होता है क्या. देन यू रिलेटेड विद एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, राइट. तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यार इसमें क्या क्या डायमेंशंस में सोच सकता हूँ, ठीक है. एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किस तरीके से करिकुलम होता है, द वे ऑफ टीचिंग होता है, राइट. तो सिस्टम मीन्स अ लॉट. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, what is the scope of the things, all this you can detail, right. Tribes, they are indigenous people. You can start with this one. Most of you wrote this answer good, ठीक है, कुछ को छोड़कर. In isolation, preserved their knowledge distinctively compared to mainstream people. Distinction क्या, tribal, they are more closely connected with the nature, how nature works, use of nature's products. Example, the Maldharis, right. Mainstream,
they have moved on to agriculture, then to industrialization, now globalization. The connect has diluted, right? Their knowledge is conserved more in songs and stories. Here you have books and recordings. They focus more on integrated learning for the community. You have individualistic learning and bifurcated learning. है ना? Sociology पढ़ेंगे, geography पढ़ेंगे, anthropology पढ़ेंगे, ठीक है? उनके वहां ऐसा कुछ नहीं है. स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया मतलब मेन स्ट्रीम में. Specialized knowledge हो गया मेन स्ट्रीम में बेसिकली. Equity, जैसे more or less you can say ना, हम कहते हैं allopathic is more concentrated on dividing the things and then studying, whereas Ayurvedic is about wholesome study of the things. उसी टाइप की बात है. They are equitable and egalitarian, ठीक है? कुछ क्लास डिविजन नहीं है वहां पर in transmitting knowledge. Here we have exclusionary, social exclusion due to inequality, patent issues and everything, right? They're more focused on conservation of knowledge, whichever they are having. Here you are focusing on refining the knowledge, again and again refining the knowledge, and scientific analysis of the knowledge, right? They say nature is equal to, is the main or the only source of knowledge. Here you are having multiple sources. Nature is one, books is another, cinema is another, right? Everything is teaching. Social media is another. What we need is, last we will say, integration is the need. Instead of assimilation, we should protect the tribal identities, we should respect the tribal identities and move forward according to the Panchsheel, right? And you can mention that TKDL is a good step. ठीक है? क्या है TKDL? Anyone? ट्राइबल डिजिटल लाइब्रेरी. Traditional knowledge digital library. इसमें कुछ जो गलतियां हुई है कुछ स्टूडेंट्स ने जो करी है, डिटेलिंग अबाउट द ट्राइबल इश्यूज, राइट? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है ट्राइबल नॉलेज सिस्टम्स के बारे में, राइट? देन कुछ सेड दैट इन द मेन स्ट्रीम देयर इज नो रोल ऑफ फैमिली. ऐसा तो नहीं है, ठीक है? इन ट्राइबल देयर इज कंप्लीट रोल ऑफ फैमिली, इन मेन स्ट्रीम देयर इज नो रोल ऑफ फैमिली, राइट? ऐसा नहीं है. डू नॉट राइट पॉइंट्स व्हिच हैव कोई बेसिस नहीं है, इलॉजिकल है जो पॉइंट्स, ठीक है ना? देन few mentioned that spirituality tribal में पूरा है और इधर बिल्कुल भी नहीं. मतलब they are trying to say कि spirituality is that one difference, right? Then few said that एक difference ये है कि tribal celebrate unique crafts and festivals, right? ये एक difference है knowledge system में. ये नहीं है क्योंकि mainstream में भी celebrate होता है, right? Just the extent can vary, लेकिन ऐसा नहीं है कि this is one of the major differences. This question is somewhere telling you कि कैसे सोचना है, right? अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द स्कोप आ गया, right? And another thing this question is telling you कि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है. 2022 में ही पूछ लिया उसने, ये 2021 का था. 2022 में उसने पूछ लिया. अगर आपने थोड़ा सा कर लिया होता क्वेश्चन, it asked कि as far as tribes are concerned, na, there are some common issues, there are some specific issues, right? Common क्या होंगे? More or less उनकी poverty common issue है, health education common issues है, लेकिन कुछ tribes के कुछ specific issues भी होंगे. उस टाइप का कुछ सवाल था, right? So if you had seen this question, solved that question, na, you would have an idea कि यार किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में, किस लेवल तक यूपीएससी ट्राइब्स को लेकर जा रहा है. एंड ट्राइब्स पर यूपीएससी हैज आस्क्ड एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल. ट्राइबल्स किन्हें कहते हैं, इवन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है? तो इफ पॉसिबल ट्राइब एज अ टॉपिक को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें. स्टेप फार्मिंग और वो
स्लैश एंड बर्न, फिर तो यू कैन एक्सपैंड, लेकिन मेन चीज थी कि नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर आप कैसे इसको खेलते हैं, राइट। और इस टाइप की क्वेश्चन ना दे विल नॉट आस्क यू इन 15 मार्कर, क्योंकि उन्हें भी पता है नॉट पॉसिबल टू राइट इट इन 15 मार्कर, बट एटलीस्ट 10 मार्कर जितना कंटेंट जनरेट कर लो। सुनामी अफेक्टेड ट्राइबल आइलैंड्स लेस, यस, कुछ उन्होंने ना कुछ ओशन वॉल सिस्टम कुछ किया था उन्होंने, जिससे सुनामीज वर एबल टू अफेक्ट देम लेस, ओशन वॉल्स। Next question is, how does the melting of the Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect the weather patterns and human activities? ये भी उस टाइप का कल्चर क्वेश्चन है where UPSC has tried to, एक तो आर्कटिक का पूछा, एक एंटार्क्टिक का पूछा, फिर का इनको डिफरेंशिएट करो, और फिर का वेदर पैटर्न्स और ह्यूमन एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, राइट। देखो कुछ लोगों ने तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही नहीं किया, सीधा लिख दिया जनरल इम्पैक्ट ऑन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ आंसर स्ट्रक्चर यू कैन अडॉप्ट इन सच अ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। अगर कॉम्प्रोमाइज कहीं करना था तो व्हाट यू कुड हैव डन कि इसको एक ही बॉडी में लिख दिया कि आर्कटिक में जब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग तो उसका वेदर पैटर्न और ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या फर्क है, और एंटार्क्टिक में हो रहा है तो क्या फर्क, ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर। अदरवाइज बेस्ट अप्रोच तो यही रहेगी, जब भी वेदर की बात करें आर्कटिक में एंटार्क्टिक में क्या, ह्यूमन एक्टिविटी आर्कटिक में क्या, एंटार्क्टिक में क्या, राइट। यहाँ पे डिफरेंशिएट पूछा है यूपीएससी ने, वहां पे आप डिफरेंशिएट तो करेंगे ना एटलीस्ट। और ये डिफरेंशिएशन वाली कैटेगरी में भी यूपीएससी अब आ चुका है धीरे धीरे। जैसे उस दिन भी मतलब एक क्वेश्चन था, वी डिड नॉट डिस्कस दैट ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस, हाउ डू दे डिफर, राइट। समवेयर दे वांट यू टू नो आपसे ज्यादा नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इन वन क्वेश्चन, ठीक है ना। And comparative analysis is what they are seeking from you, right? अब जनरल बता देंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना परसेंट राइज हुआ है टेम्परेचर, एंड उस कारण से डिस्प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट ऑन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, बट ऑल्सो देयर इज डिफरेंशियल इम्पैक्ट, राइट। इस तरीके कुछ बताकर इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट। वेदर इम्पैक्टेड, अब ये ना बस पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ इफ बट नहीं कि ये क्या है, ये क्यों है, दीज आर ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो हो रहे हैं, राइट। इसमें आप इसके काउंटर नहीं लिख सकते कि नहीं स्लोइंग नहीं हो रहा है, फास्ट हो रही है जेट स्ट्रीम्स, राइट। लिखेंगे तो वो गलत है, राइट। जब जेट स्ट्रीम हो ही स्लो रही है तो हाउ कैन यू राइट कि वो फास्ट हो रही है, राइट। स्लोइंग ऑफ जेट स्ट्रीम्स, पोलर वोर्टेक्स, ठीक है, वी कैन से वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स, ठीक है ना, erratic ENSO, weakening of extra tropical cyclones, contrast अगर कम होगा तो of course they will weaken ना, extra tropical cyclones are a result of differing air masses, है ना। अगर वो contrast कम होता रहेगा with time तो extra tropical cyclones will definitely weaken, है ना। see tropical cyclones are a result of different things, वो जितनी heat मिलेगी they will keep on increasing, extra tropical cyclones are a result of different things. Logic says this कि वो weak होंगे, right, क्योंकि their intensity depends more on the contrast, right? अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रीजन का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वो स्ट्रेंथन हो, लेकिन हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं एज अ जीए स्टूडेंट, राइट। देन सेंट्रल पैसिफिक ट्रेड विंड इंटेंसिफिकेशन, दिस इज अ पॉइंट आई एम येट टू नॉट एबल टू रिमेंबर कि एक्चुअली ये क्या था, हैव टू सी दिस थिंग, ठीक है। देन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन मिड लैटिट्यूड्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इधर भी आएंगे। कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, राइट।
कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे इधर सेंट्रल पैसिफिक ट्रेड विंड इंटेंसिफिकेशन, इधर जेट स्ट्रीम पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, अब जेट स्ट्रीम पोलर वोर्टेक्स ना आप एंटार्क्टिक में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो बेवकूफी लगेगी फिर। बट इतना पता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दोनों के कारण इरेटिक होंगे, राइट। देन मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, इधर भी होगा भाई, सैलिनिटी इधर भी होगा भाई, तो ये सब लिख सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक्स को पहले रखें, जनरल्स को बाद में रखें, राइट। वेर यू आर डिफरेंशिएटिंग द वार्मिंग ऑफ ओशनिंग करंट्स अराउंड एंटार्क्टिका, कुछ एक के नाम ले देना, फॉकलैंड और ये सब, सर्कम पैसिफिक ड्रिफ्ट और ये सब, ठीक है। देन स्लोइंग ऑफ AMOC, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज AMOC? Atlantic Meridional Ocean Circulation, राइट। अब मुझे अभी ये याद नहीं है एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स, लेकिन दिस इज एन इम्पैक्ट, ठीक है ना। बट डू नॉट बी सरप्राइज्ड अगर UPSC स्पेसिफिकली यही पूछ ले आपसे, ठीक है ना। इन अ 10 मार्कर इट कैन वेरी इजीली आस्क यू दिस। परमाफ्रॉस्ट, यहाँ पर अगर कुछ आपको मेंशन करना हो कीवर्ड, सो दैट वुड बी पॉजिटिव लूप, ठीक है ना। क्या होता है पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक? व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक, एनीवन? सर परमाफ्रॉस्ट कम हो रहा है तो उससे CH4 आ रहा है, तो वो और गर्म करेगा तो परमाफ्रॉस्ट और कम होगा, आई थिंक वही है शायद। हाँ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग विल प्रमोट मोर ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, साइकिल बेसिकली। हाँ, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज पे कैसे इम्पैक्ट होगा आर्कटिक एंटार्क्टिक में? अगेन 50% थिंग्स आर सेम, कुछ अलग होंगी, अलग को पहले लिखो, सेम को बाद में लिखो। ओपनिंग ऑफ नॉर्थ सी, जियोपॉलिटिकल क्लेम्स फॉर रिसोर्सेज एंड ट्रेड, राइट। impacts native economy, subsistence hunting, fishing, herding. Physiological stress to colder people, colder climate में जो रहते हैं लोग, and biodiversity, fishing grounds, इधर भी वही, Antarctica are global commons. Impact the claims are regarding competition, right? Competition बढ़ाएगा वहां पर, livelihood issue होगा, coastal erosion, storm surges होंगी, and impact on small island development states, ठीक है। मोर और लेस काफी चीजें कॉमन है इसमें, ठीक है ना। इसमें हम इम्पोर्टेंट, पोलर एक्सप्लोरेशन जैसे दक्षिण गंगोत्री पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, यू कैन मेंशन लाइक दिस कि नेशन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स या एक्सप्लोरेशंस विल बी इम्पैक्टेड, क्योंकि क्वेश्चन इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो वी शुड मेंशन लाइक दिस, राइट, कि नेशन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, राइट। कुछ लोगों ने ना इसमें कुछ गलतियां की हुई थी, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट ही डिफरेंशिएटेड कि आर्कटिक में ब्लॉक्स टूट रहे हैं, एंटार्क्टिक में शेल्स टूट रहे हैं, राइट। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड देन फ्यू ऑफ ना क्वाइट इररेलेवेंट आई वुड से ही मेंशन कि आर्कटिक के नीचे ज्यादा लैंड है, एंटार्क्टिक के नीचे ज्यादा वाटर है, तो इस टाइप के कुछ। देन परमाफ्रॉस्ट आर्कटिक में नहीं है, एंटार्क्टिक में है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ना। दिस डज नॉट मेक मच सेंस, ठीक है ना। देन कंट्रीज को दिक्कत आर्कटिक में होगी ज्यादा, एंटार्क्टिक में नहीं होगी, राइट। ऐसा नहीं है, राइट। तो वो चीज लिखो जो एटलीस्ट, ऑफ कोर्स हमें भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होंगे, बट एटलीस्ट लॉजिकल लगना चाहिए वो, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप डिसेंटली भी खेल आए, एक्सीलेंट तो कोई खेल ही नहीं सकता, राइट। योर डिसेंट विल बी इक्वल टू योर एक्सीलेंट, राइट। बस हाँ, थोड़ा सा मैप बनाता है, मैप भी ऐसा नहीं कि राइट ये मैप बना दिया इतना बड़ा, एक स्मॉल मैप, ठीक है। और वहां पर एक पॉसिबल 2-3 चीजें दिखा दो, ये नॉर्थ सी वाला एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ से सर्कम पैसिफिक ओशन करंट है, ठीक है, कुछ एक लार्सन शेल्फ आपको याद आता है, वट एवर, राइट। 1-2 चीजें बताओगे, डिटेल करोगे तो
वो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है उसको. That makes your map much more meaningful. Next is discuss the multidimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. जितना मुझे याद है, I guess 2-1 साल पहले यूपीएससी asked about mineral oils as a resource कहाँ पर distributed है, right? In 2018, I guess it asked this question, and 2021 में it asked mineral oil की implications क्या है, right? As far as I can recall, हो सकता है मैं गलत भी, ठीक है ना. तो मिनरल ऑयल मतलब है कि यूपीएससी के रडार पे हमेशा है, ठीक है ना. एंड इसी तरीके से शायद कोल भी हो उनके रडार, ठीक है. तो जहां तक रिसोर्स वाला टॉपिक आता है, तो एज फार एज द कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर कंसर्न ना, तो इसको तैयार कर लेना, राइट. हिल से पेट्रोलियम की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. कंट्रीज को मेंशन कर दो मेजर, ये लगभग 50% मिडल ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके बाद बाकी यूएस है, वेनेजुएला है और बाकी देश, राइट. एक छोटा सा मैप बना दें, राइट. एक आध दो ऑयल फील्ड याद है वो बता दें, ठीक है. दिस पार्ट शुड समवेयर एंड अराउंड की आधे पेज में खत्म हो जाए इफ इट इज अ 10 मार्कर, एंड मैक्सिमम 60% ऑफ द पेज इफ इट इज अ 15 मार्क, राइट. मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन मतलब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होगा, रीजनल इम्प्लीकेशन होगा, डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन होगा. अब जहां पर मल्टी डायमेंशन आए, सिलेबस को याद कर लो बस. सिलेबस में कहाँ से चल सकते हो, ऑयल की जहाँ पे बात करी, अगर आप देखो योर सिलेबस इज डिवाइडेड लाइक दिस. हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, यही है. हिस्ट्री में तो हमें पता है ना, कभी अभी आएगा, यू नो, उसमें कोई है नहीं अपने पास, ना ही सोसाइटी में सच हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट. एक पॉइंट ये हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, द वे द ग्लोबलाइजेशन इज कंडक्टेड, उस पे फर्क पड़ेगा, राइट. लेकिन इसमें वही सेम माइग्रेशन का पॉइंट भी आ आप, सकता है ना, कि डायस्पोरा का कंसेप्ट, कि ऑयल नेशंस में ज्यादा माइग्रेशन होता है, जैसे अभी इंडियन में डायस्पोरा साउथ मिडिल ईस्ट में हाँ है. कर सकते हो बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट. अब लेकिन वही है कि वो आप इंटरनेशनल और इकोनॉमिक में कर सकते हो इंक्लूड, राइट. तो सोसाइटी में भी आता है, ऑफकोर्स ज्योग्राफी में आता है थोड़ा बहुत, ठीक है. ज्योग्राफिकल पॉइंट्स यू कैन थिंक अबाउट. देन पॉलिटी वाला कुछ नहीं आ सकता, ये कुछ नहीं आ सकता. 1 2 इकोनॉमिक्स वाला डेफिनेटली आएगा, कुछ एक एनवायरनमेंट वाला आएगा, खींच खांच के साइंस टेक वाला आ जाएगा, ये नहीं आता, राइट. इतना ही कुछ बनता है. आपको पता है, कैन एक्सप्लोर अलॉन्ग ज्योग्राफिकल, इंटरनेशनल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एट माई साइंस, ठीक है. ब्रॉड ब्रॉड आपने समझ ली. नाउ यू नीड टू एक्सपैंड अलोंग दीज लाइंस. ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो पहले ये ले आओ, एक्सीडेंटली आई मेंशन दिस पार्ट, पहले ये ले आओ, देन ये ले आओ, देन ये एंड लास्ट में ये लास्ट, राइट. क्या इकोनॉमिक्स में डिफरेंस आएगा, एक तो प्राइस डिफरेंस, नॉर्मल, ठीक है. अरेबिया में सस्ता मिलेगा आपको, सऊदी अरेबिया में, इंडिया में महंगा मिलता है, ठीक है ना. देन इन्फ्लेशन फॉर इंपोर्टिंग कंट्रीज, राइट. इन्फ्लेशनरी, सॉरी, इंपोर्ट इन्फ्लेशन कहते हैं शायद ये टर्म को. इम्पैक्ट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, एग्जांपल है वो, एक वो इकोनॉमिक सर्वे देता है ना कि $1 बैरल जब हमारा तेल बढ़ता है तो इतना हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैड बढ़ जाता है हमारा, नहीं. देन इट मींस इनइक्वालिटी, राइट. जो देश अमीर है एंड दे आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन देयर नेचुरल रिसोर्स, तो डेफिनेटली यू नो डेवलपमेंट लेवल्स अच्छे होंगे. अगर आप सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट देखो, व्हाटएवर इट हैज अचीव्ड,
या फॉर जनरल अगर आप मिडल ईस्ट की डेवलपमेंट देखो, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण तो हो पाई है वो, राइट। देन नेचर ऑफ ट्रेड, किसकी इंपोर्ट बास्केट में क्या होगा, किसकी एक्सपोर्ट बास्केट में क्या होगा, oil is deciding this thing. Next is regional conflicts, because oil is a strategic resource, right? In Middle East, between different nations, let's say recent Ukraine Russia, कहीं ना कहीं तो वही कारण है ना कि वहां पे ब्लैक सी और वो क्रीमियन रीजन में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, राइट। दिस इज द अंडरलाइंग रीजन। कल्चर तो आता है लेकिन वो भी कारण है, राइट। देन ऑन ओशंस, South China Sea, कि you are laying unsubstantiated claims because you feel कि बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। अगर आज साउथ चाइना सी में कुछ होता ही ना, ठीक है, तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि उधर चाइना ऐसे क्लेम्स दे रहा हो, राइट। देन इट प्रमोट्स कार्टलाइजेशन, ठीक है ना, इसको इकोनॉमिक में भी डाल सकते हो कि फ्यू कंट्रीज मेक अ कार्टल, कि ओपेक कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया कि इस प्राइस से नीचे तो जाएगी नहीं चीजें, राइट। इंटरनेशनल में इट इज वन ऑफ द डिप्लोमेटिक लेवरेज, ऑयल डिप्लोमेसी। आज इंडिया के रिलेशंस मिडिल ईस्ट के साथ इसलिए अच्छे हैं डिस्पाइट लेट्स से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग है, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बैड रिलेशंस और नॉट सो गुड रिलेशंस विद देम, राइट, क्योंकि वी आर येट टू डाइवर्सिफाई एंड मिडिल ईस्ट स्टिल रिमेन्स वन ऑफ आवर मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स, राइट। देन यू कैन से जिसके पास है एनर्जी सिक्योरिटी, नहीं है एनर्जी इनसिक्योरिटी, राइट। इसको आप एनवायरमेंटल वाले में ले सकते हो, राइट। देखो ऑयल है, ऑयल के रिस्पेक्ट में आप एनर्जी रिलेटेड तो पॉइंट बनाओगे ही अलग से, राइट, कि उसके कारण एनर्जी सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। देन यूल से यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है, जिसके पास ऑयल है वो उसके लिए क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करना विल ऑलवेज बी अ डिसइंसेंटिव, राइट। कंपेयर इट विद इंडिया, अगर आज इंडिया के पास ऑयल व्हील्स बहुत ज्यादा होती तो पंचमृत वगैरह हम शायद ना देख रहे, राइट। Whereas Saudi Arabia will always find it difficult to transit to clean energy. Relative sense में सारी बात हो रही है, लेकिन you understand the point, right? तो जहाँ पर भी आपको मल्टी डायमेंशनल चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर अपना सिलेबस याद कर लो, सिलेबस में से 4-5 चीजें जस्ट पिक देम अप एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लो, ठीक है ना। डू नॉट डू दिस मिस्टेक, ठीक है, इट लुक्स वेरी अनटाइडी, ठीक है, इट लुक्स वेरी इमेच्योर, ठीक है। Again, I've said your mistake is not categorizing. Need is to diversify. India has taken this initiative. Diversify in the sense towards renewable energy and towards oil sources as well, right? Next is easy question, I guess. ज़्यादा है नहीं उसमें कुछ. How does Indian society maintain continuity in tradition and social policy, social values? Enumerate changes taking place. आप कह दोगे how certain values like compassion, brotherhood, fraternity, tolerance are, our core policies since time immemorial. कैसे हम इसको कर पा रहे हैं? We have an assimilation policy throughout the history. We have accommodated people who have come to India. ठीक है, examples दे सकते हो. Then धम्मा, अकबर. Then evolution हुआ है हमारे उसमें एक माइंडसेट में. Of course कुछ चीजें आज भी रिग्रेसिव है, लेकिन we have evolved. अगर चीज अच्छी नहीं लगी तो we have discarded it. Adopting progressive, rejecting regressive. Role of religion, Guru Nanak Dev Ji, Bhaktism, Sufism, Buddhism, family as an institution, promoting joint family system, role of elders, everything. Rich culture in the form of festivals, social gathering, epics like Mahabharata, Ramayana.
कुछ चीजें जो लोग मिस कर गए, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग माई सेल्फ एज वेल, इसको लिख देना चाहिए या नहीं लिख देना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, राइट, आई विल ऑलवेज लाइक टू इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन एज वन थिंग, राइट, कि अगर आपका संविधान आपका साथ ना देता, आप कितनी भी कोशिश कर लो, यू वुड नॉट हैव बीन दैट सोसाइटी जो हम आज हैं, राइट। तो एक पॉइंट आप हमेशा मेंशन करिए कि इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड which has given us this much leverage and freedom to continue our traditional values, right? And it was the visionary leadership of the people who designed the constitution, right? उसे थोड़ा बाद में लिखना, लेकिन this point should be a value addition. Constitution के बिना ये ना हो सकता, right? आज ऐसा ना हो पाता, ठीक है? Changes, tolerance seems to be under threat by fringe elements, increase of individualism, increase in joint family system, emergence of nuclear family. Social media has emerged as a source of medium of knowledge compared to the other forms of the other mediums, let's say the elders. Changes in women identity, live-in cohabitation are somewhere indicating change in marriage as an institution. ठीक है, बाकी जो भी सोसाइटी में पॉइंट्स पढ़ते हो सब रेलेवेंट हैं इधर, ठीक है। तो इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। the reason I discuss this question is क्योंकि almost everyone missed on this aspect, constitution वाला, ठीक है। any doubt किसी को? we have discussed the 10 questions. सर इसमें अपन विजनरी लीडरशिप में ये बता रहे हैं कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन्होंने, या फिर अपन दूसरों की बात कर रहे हैं जैसे विवेकानंद और उनकी? सबकी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उनकी भी कर सकते हैं। यू कैन इवन टॉक अबाउट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। यू कैन से that his vision was of an inclusive and democratic India, right, where every religion is celebrated. Am I audible? यस सर। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है until unless it is a very controversial figure, उनको ना लिखे, वरना सब ठीक है, right? ओके। We discussed 10 questions, कोई डाउट किसी को? देखो, for those, and this is for those who have opted for answer writing as well, I guess मुझे शायद 2 कॉपीज मिली है आंसर राइटिंग की अभी तक, and if this is the way you are going to continue with answer writing, तो you know how are we going to proceed? ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर। तो tomorrow is the last day, ठीक है, लास्ट डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ डे 1 आंसर राइटिंग कॉपी। जिन्होंने कर दी है वेल एंड गुड, जिन्होंने ऑप्ट की आंसर राइटिंग के एंड स्टिल हैव नॉट डन इट, सो टुमारो इज द लास्ट डे। एंड अगर यू नो इफ देयर आर नॉट, अगर कर ही नहीं रहे हो आप सबमिट, या इफ देयर आर नो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सबमिटिंग, तो फिर द बेस्ट वुड बी कि मैं आपकी कॉपीज को 1 बाय 1 कॉल पे डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना। जिन्होंने करी है सबमिट उनकी कॉपीज में डिस्कस कर लूंगा। टिल द टाइम देयर आर लेट्स से 4-5 कॉपीज जो आपने सबमिट किया एंड आई सी सम मिस्टेक्स, ठीक है, तो उसको हम एक कॉमन सेशन रख के डिस्कस करेंगे। बट इफ यू आर नॉट डूइंग सो, तो जिसने सबमिट करी है, इट्स बेटर कि उन कॉपीज जो भी इश्यूज है 1-on-1 कॉल पे ले लीजिए, राइट। So tomorrow is the last day to submit your day 1 answer copies, and one thing you need to do is, मैं अभी I'll update in our channel or as well, अब से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो पॉइंट्स है, उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट रहेगा फाइल नेम का, और जो आपके आंसर राइटिंग है उसके लिए अलग फॉर्मेट रहेगा, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट कि अच्छा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है, ये आंसर राइटिंग वाला पार्ट, राइट। तो क्योंकि आपके एंड से ही डिले है आंसर राइटिंग को सबमिट करने में, ऑफ कोर्स आप अगर आंसर्स लेट्स से 24 तक सबमिट करोगे,
ठीक है, तो मिनिमम वो 26 या 27 तक इवेल्युएट होके आएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम हम 27 या 28 को डिस्कशन रख सकते, तो 3-4 दिन का नेचुरल गैप रहेगा व्हेन इज द लास्ट डेडलाइन बिटवीन, है ना, एंड द नेक्स्ट सेशन फॉर दैट डिस्कशन। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसको करते रहे इस सब में। ठीक है, ये आई वांटेड टू से। नेक्स्ट सेशन आज है 23rd। ठीक है, मोस्ट लाइकली 26th विल बी द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, वी आर नॉट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ सेशंस, वो हमारे हो जाएंगे कवर, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द ट्रैक। बट एज फार एज द आंसर राइटिंग इज कंसर्न ना, तो उसके डिस्कशंस डिले हो रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा सा आप तेजी दिखाइए, तो विल बी एबल टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। कोई डाउट किसी को? सर बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था, तो कुछ अनाउंसमेंट्स जो थी अगर आप रिपीट कर सकें। देखिए, मैं आपका तो मुझे आंसर कॉपी मिल गई है शायद, है ना, फर्स्ट डे की। हाँ, आई वाज सेइंग कि जो अभी कुछ लोगों की ना आंसर कॉपीज आई नहीं है, राइट, आई वाज टेलिंग देम टू हरी अप अ लिटिल। लास्ट डे इज टुमारो, इज द लास्ट डे टू सबमिट योर डे 1 आंसर कॉपीज। आफ्टर दैट जो सबमिट करेगा उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस कारण से बाकियों के लिए भी मुश्किल हो रही है, राइट। तो आई वाज सेइंग कि सेशंस में तो वी आर मूविंग राइट, ठीक है, विल बी एबल टू कवर एज पर द शेड्यूल, बट अगर आपकी साइड से डिले होता आंसर राइटिंग में, तो वो इवैल्यूएशन में टाइम लगता है, फिर उसको मेरे को देखना पड़ेगा कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो करी हैं आपने, डिस्पाइट लेट्स से डिस्कसिंग ऑन द सेशन, डिस्पाइट द इवैल्यूएशन इन एवरीथिंग। ठीक है, तो उसमें फिर शायद थोड़ा डिले हो। एंड अगर मान लो एक या दो लोग ही वो लिख रहे हैं आंसर, तो मैं आपके साथ 1-to-1 कॉल करके ही उसको डिस्कस कर लूंगा फिर, राइट, कि आपकी ये गड़बड़ है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग आई वाज सेइंग इज कि अब से ब्रेनस्टॉर्मिंग और आंसर राइटिंग का फाइल नेम फॉर्मेट अलग रखेंगे, ताकि वो समझ आ जाए कि आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली असाइनमेंट है, ये आंसर राइटिंग वाली असाइनमेंट। नेक्स्ट सेशन मोस्ट लाइकली विल बी ऑन 26। ठीक है, एक या दो दिन का चलेगा ऐसे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हम रख नहीं सकते, क्योंकि वी हैव टू नो, रियलिटी कुछ ऐसी होती है कि एक या दो दिन का डिले हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर ये सेकंड डे का जो आज जो आप सेशन में उसका आंसर राइटिंग का डेडलाइन। इसका आंसर राइटिंग डेडलाइन है से एट मैक्स, आज क्या है, 23 है, 24, 25 तक तो दे दीजिए, 25, 26 आफ्टरनून एट मैक्स। ठीक है ना? तो सर हेलो नेक्स्ट सर। सेशन 26 को है क्या? हाँ, अभी के लिए 26 को ही है, क्वेश्चंस मैं आज दे दूंगा, राइट। ओके इन केस 26 को नहीं होता तो एट मैक्स 27 को होगा। ओके। हेलो सर। हाँ जी, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट सेशन था, हाँ जी। इसलिए मैंने एक्चुअली इस सेशन का डायरेक्टली आंसर्स ही सबमिट किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला नहीं सबमिट किया था। कोई बात नहीं, फिर मैं आपकी ना वो आंसर इवैल्यूएशन में भेज दूंगा। ओके, फर्स्ट सेशन का मैं भेज दूंगा आंसर, डायरेक्टली आंसर्स ही भेज। तो कल तक भेज देना फर्स्ट सेशन वाला। ओके ओके सर। सर अगले क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले। हाँ, आज मैं दे दूंगा। अब देखो 2022 का GS1 मिलेगा आपको, और 2018 का GS2 मिलेगा। और उनको सबमिट करने का तो फिर 25 तक होगी कि उससे पहले 24? टुडे इज 23rd ना, आई गेस 25 नाइट तक, 26 मॉर्निंग तक कर दो सबमिट। ओके। मतलब इफ पॉसिबल 25 नाइट तक ही कर दो, ताकि हम 26 नाइट में सेशन ले पाए एटलीस्ट। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन?